Yeah, hi. Very good afternoon. I'm audible. Please acknowledge. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just allow me hardly 5 to 10 minutes so that Yes, sir. everyone can join. Okay. So in this session, we have more than 50 plus students, right? So make sure everyone should, keep yourself muted. If you have any query, you can raise your hands, or you can text your query in the chat box, right? In between, you can go through with my profile, what I have done, or, the company which I am currently working right now. Even though you can go through with my previous experience with the previous organization as well. So just have a quick brief about myself. Myself, Abhishek Arora.
right? I'm currently working as a post of manager, right? And that's been more than 10 plus experience in this current organization. And when you talk about my roles and responsibility, I am highly passionate and highly dedicated towards the campaign process, where where you can say I set up the campaign and launching the campaign process to to optimize the sales and a profit of a certain organization, right? I closely work with the cross functional team so that my target related to a leads can be achieved, right? And yes, that is all about myself. And I hope you already go through with my profile over the LinkedIn as well, right? My voice is clear or not? Yes. No, sir. Okay, let me check. Okay, yeah. Okay, it is clear. Yes, please acknowledge. Yeah, sir. Yes, okay, Yes, sir. great. Yes. सर थोड़ा लो वॉल्यूम है. ओके, एक मिनट रुकिएगा. अभी क्लियर है, राइट? Yes. Yes, राइट, sir. ओके. Okay, so one more thing I just want to add. I have started my career from the print media, right? And now being, the entire industry, entire environment has been shifted to a digital. So yes, we are working on digital media interface as well. So I am core into a lead campaign process, right? I generate a lead for the customers, and these are the customers who are into a furniture industry, who are into a paint industry, or you can say who are into a home decor. Even though they are the certain clients, who are into a real estate sector. So that is all about. You can say that that is my uh, more experience into a digital and entirely a campaign process, right? Okay, so I think all of them has been added. Let me check. That is Victor. Okay, we are 57. Okay, anyone can explain what is LinkedIn and how does it work and what is the main functionality? Yes, anyone? What is LinkedIn? Yes, Richa. Yes. Am I audible, sir? Yes, please. Sir, actually, LinkedIn is a social media platform. Mm-hmm. It is basically used by the professionals, Mm-hmm. and here we build networks with people. Okay. And here we can, if like someone is looking for a job, Mm-hmm. then he or she can also go for various vacancies here. I mean, these vacancies are available here. Mm-hmm. That's it, I know. Okay. Okay. Anyone else? Yes. If anyone want to add something, yes, please. Abhay, Ajay, Ayush, Bhumika, Gagan, Gaurav, yes, Harsh, Hena, anyone? What is LinkedIn? Yeah. Yes, Shruti, बताइए. Yes, please. Hello, Yeah. am I audible? Yes, बताइए, please. LinkedIn is a professional and social networking platform. Mm-hmm. And what is the main purpose using of LinkedIn? Why everyone is, It's yeah. a for recruiters, and we have done job searching, hiring, sharing professional connections, Mm-hmm. learning through courses like uh, that's it. Okay. Okay. Yes, Garima. So here we can go professionally. Mm-hmm. Like we can find our jobs here, and we can also do internships through LinkedIn. Mm-hmm. And apart from that, we can do our personal branding on LinkedIn, and we can build a professional network here. And we can also learn from experts. Like I am learning from Patrick here on LinkedIn about sales. Mm-hmm. And we can also promote our brand on LinkedIn through personal branding. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Yes, It, sir.
Okay. Yes. Yes, Hina. So, LinkedIn is a social media platform. So we can use LinkedIn as we can show our skills, Mm-hmm. experience, achievements here. We can find jobs. We can provide jobs as well. Mm-hmm. We can do partnerships. We can find professionals for Mm-hmm. our business here. Mm-hmm. Many more. Yeah. Okay. And yes, Khushi. Hello, Yeah, sir. Khushi. Am I audible? Yes, yes. So, rest everyone has told you, but I would like to add one thing Mm-hmm. that the LinkedIn's also allow businesses to, you know, to reach the targeted audiences. Mm-hmm. Business to like share, we can share our content with our targeted audiences in LinkedIn, on their LinkedIn feeds. Okay. Okay. ठीक है. Okay, so एक बार Mm, चैट देख yeah. लेते हैं. चैट पे सांची, it is sir, it is B2B platform as well. Sir, it is B2B platform as well. Okay, yeah. Okay, so when we talk about LinkedIn, yes, it is again a social media networking site. In the same way we have done in a Insta, in the same way we do with the Facebook, in the same way we do with the Twitter, right? But yes, the few of the points, or we can say few of the fundamental points can be added here, that it allow the user to connect with the professional relationship with the other person, right? Even though we can say that it is a site where we can we can promote our business, or we can say, as other person has already been mentioned, that it is again B2B site, right? Where we can market our product to a other company as well, so that they can avail our services. In terms of in terms of a growth, or in terms of a sales, we can generate a leads, we can bring the customer to our product. Yes, it is a tool. In that way we can use, right? Anyone else? Yeah. Anyone else about the LinkedIn? Yes. Sir, may I? Yes, yes, please, everyone. Sir, we can actually here we can showcase our skills Mm-hmm. and achievements and experiences Mm-hmm. we had. And apart from that, I think LinkedIn personally we can get a lot of networks here. Like we Okay. can grow our networks. Okay, and what is Like the use, what will be the use of those network or those connection there? so, we can use that network in our business or in building our personal brand. Mm-hmm. And Okay. apart from that, it also helps us professionally. We can connect and do partnership there, Okay. and and we can also do collabs. Right, that is good thing. Yes, we can do collabs. Yes. Okay. Yes. Okay, so when we say we do B2B business, even though we can say B2C B2B B2C business as well, right? In both ways we can use a LinkedIn, right? We don't say here that we are just using a LinkedIn for B2B customer, but yes, vice versa as well. We can do business for the B2C customer. I think all of them are agree that we can do B2C as well. Via the LinkedIn. Agreed or not? Just acknowledge. Yes. Okay. So when we, any example, we can portray here that via the LinkedIn we can do B2C business as well. Yes. Anyone? Yes. Anyone, please? Yes. Sweetie. Yes. You have raised your hand. Yes. Besides B2C. Any example? Okay. Tanishka. Yes. Am I audible? Yes. Yes. Tanishka. Yeah, so mainly in B2C business is where we directly sell to our consumers, right? Mm-hmm. So we could be running ads, or we could be just showing our skills and what we have to offer and what is the value that we are putting in better than the other competitors, right? Mm-hmm. And they can directly raise queries to us and purchase from us other than, having a commission base or something like that. Right. Right. So, Tanishka, you raise a point that is B2C, that is a business to consumer, right? Yes. I think we can say here B2C, that is business to yeah, business to customer. Okay. C can be customer, right?
Yes, yes. And what is the difference will be, why I am highlighting here, what is the difference between customer and consumer? I think all of them knows. The person who consume, that is a consumer, right? The Yeah. customer who can, who can be your your consumer, or who can be your customer, right? So that is the reason we always say that is B2C. That is, we always say that is C is a customer in that case, right? All right. Right. Okay. Okay. So, okay, one thing I just want to add here, when we talk about, LinkedIn is a site where, we do a job hunting as well. So I think all of them knows that, we have a Times job, right? We have a Naukri.com, even we have a, Monster, we have a LinkedIn, right? But yes, more or less we can say that the LinkedIn is an interface which brings the customer more passionately towards its interface, just because of its own यूजर एक्सपीरियंस, राइट? आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे. In comparison with the Naukri or LinkedIn, we can say we are more, we focus on LinkedIn, right? Just because of there is a highly, good interface there, right? We can, we can put our good picture on LinkedIn. We have a, we have a posting feature, we have an article feature, even, we have a good headlines feature there as well, right? In comparatively of, Naukri, we more focus on LinkedIn. Anyone can counter on it? एनीवन? या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग कि नौकरी डॉट कॉम के कंपैरेटिवली लिंक्डइन को ज्यादा बूस्ट मिला है इन टुडेज सिनेरियो. एनीवन? या Yes, because um, in LinkedIn we can direct communicate with the HR or the person राइट. like who is hiring. And in Naukri.com we just submitted our CV, and someone pick our CV and mail us or message, I think. राइट. वेरी So नाइस, वेरी नाइस, वेरी yeah. नाइस. फर्दर एनीवन कैन ऐड? या एनीवन? Sir, like on Naukri.com, we can only apply for the vacancies, and like here, we can do like both hiring and like offering both, वेरी and we नाइस. can also reach out to the people here through messaging. वेरी नाइस, वेरी नाइस. फर्दर, यस. अभी कुछ और पॉइंट्स आने बाकी हैं. यस प्लीज, एनीवन? यस तनिष्का? Yeah, so basically Naukri.com is like a website where you can, it's like a third party thing. And LinkedIn is where you can connect directly. You can reach out to the HR or even the boss, and you can explain your current job or what you're passionate about. And you might, directly land a job when you are interacting with them rather than when you're just interacting with a third person and dropping off a resume like everybody else. Like it won't shine you out in a group of people. Right, right, right. Okay, further, yes, that is very nice. Yeah, further, anyone? Yes, Garima. Sir, like on LinkedIn, we can get job out of our profile only. Like if our profile is optimized, we can get the job out of it, but it's not possible on Naukri.com, like on this web. Right, right. Okay, further, yes, Ajay, Anchal, कहाँ हैं बाकी सब लोग? Please answer. Ayush, Dheeraj, Dushyant, Gagan, yes, please answer. Yes, Afreen, yes, बताइए. We are uploading our achievements over there, so HR of the company automatically uh, seeing our regular achievement, and when we are achieved that achievement, what are the requirement of company and agency, the company and agency automatically connect with us uh, with, by the process of interview and other assignment and tasks. Okay, okay, great, very nice. Yeah, thank you. Yeah, Dheeraj. Yes, हम Dheeraj. जो नौकरी.com जो ऐप है, वेबसाइट है, उस पे सिर्फ इंडिया की कंपनीज पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो लिंक्डइन है वो अदर कंट्रीज पे भी सीवी डाल सकते हैं और नौकरी के लिए अप्लाई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ओके, ठीक है. ओके, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ. धीरज, एक चीज थोड़ा और समझिएगा. देखिए, जब हम लोग ये चीज बोलते हैं ना कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द नौकरी एंड लिंक्डइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक सब लोगों ने एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ा भी होगा. दैट इज कॉल्ड यूआई एंड यूएक्स. एवरीवन नोस व्हाट इज यूआई, व्हाट इज यूएक्स?
So user interface Yes, is sir. That is experience. user interface and user experience, User right? experience. When we say user interface na, so user interface is like the interface or the platform which you are using. जब मैं बोलता हूँ कि यूजर इंटरफेस के अंदर लिंक्डइन मेरा एक टूल है, राइट? तो उसका एक इंटरफेस कंपनी ने ऐसा बिल्ड करा है दैट इज अ मोर एंगेजिंग, राइट? इन कंपैरिजन विद नौकरी और टाइम्स, राइट? उनका उनकी फंक्शनैलिटी, उनका प्रोसेस वो बिल्कुल अलग है, राइट? देयर वहां पे आप लोग करते क्या है, वहां पे आप लोग अपने रेज्यूमे, वहां पे अपने प्रोफाइल को आप लोग अपलोड करते हैं। एंड जब मैं यहाँ पे लिंक्डइन की बात करता हूँ, लिंक्डइन एक खुद में एक ऐसा टूल डेवलप हुआ है एज अ सोशल मीडिया इंटरफेस डेवलप हुआ है, जहाँ पे कंपनी खुद ही अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रही है। धीरज, अभी क्लियर है? जब मैं यहाँ पे नौकरी की बात कर रहा हूँ, जब मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन यस आज के सर। टाइम में मेरा एक प्रॉपर कंपनी की ब्रांडिंग का पेज है ये। लेकिन जब मैं नौकरी की बात करूँ, नौकरी पे वी हैव अ जस्ट सिंपल ऑप्शन, वी जस्ट गो देयर, वी जस्ट अपलोड आवर रिज्यूमे एंड वी डू रेगुलर एक्टिविटी काइंड ऑफ, वी सर्च द कंपनी, वी अप्लाई फॉर द जॉब, राइट? बट आज के टाइम में लिंक्डइन एक ऐसा टूल है जहाँ पे कंपनी अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, कंपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने इसके ऊपर। से यस, नो, एवरीवन? यस, Yes. Yes. राइट, ओके। Yes, Yes, sir. sir. अब थोड़ा सा ना, Yes, sir. थोड़ा सा पॉइंट को और, यस, थोड़ा सा पॉइंट को और ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत बहुत केयरफुली समझिएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन एक बार यूएस, सर रिपीट कर दो दोबारा। ओके, जब मैं यहाँ पे लिंक्डइन बोलता हूँ, रिपीट जब मैं रिपीट यहाँ पे नौकरी बोलता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिंक्डइन के इंटरफेस को उन्होंने इस तरीके से एनहांस करा है सो दैट कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बिल्ट हो रहा है, राइट? लोग आज के टाइम में बहुत पैशनेटली से यूज कर रहे हैं इन कंपैरेटिवली और नौकरी, जस्ट बिकॉज हमें भी पता है कि जहाँ पे हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कंटेंट अपने से खुद से डाल सकते हैं, वहां पे मेरा एंगेजिंग पावर बढ़ जाता है, राइट? लेकिन नौकरी के अंदर ये सिनेरियोज नहीं है। नौकरी के अंदर क्या, आप लोग सिर्फ अपने एक वर्ड डॉक को लेते हैं, यू जस्ट अपलोड देयर, यू जस्ट गो फॉर द नौकरी सर्च एंड देन यू जस्ट डू अप्लाई। बट लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हो, राइट? जब मैं ये बोलता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर कंपनी अपनी खुद की ब्रांडिंग भी कर रही है, इवन दो आई थिंक किसी ने ये चीज बोली भी थी, हम लोग यहाँ पे अपनी खुद की भी ब्रांडिंग करते हैं। किसी ने बोला भी था अभी सेशन के टाइम पे भी। सो दैट इज द रीजन, जब यहाँ पे ब्रांडिंग की बात आ रही है, वहां पे कंपनीज की भी ब्रांडिंग हो रही है, आप लोग अपनी खुद की भी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी क्लियर है दुष्यंत? यस, Yes, sir. राइट, ओके, यस सर, क्लियर ओके। है। अब एक चीज और यस सर। समझिएगा, अब इसमें एक चीज और समझिएगा, जब हम लोग ये चीज बोल के चलते हैं ना, अगर आप लोग कोई ऐसा टूल जिसपे आप लोग यूजर को हैंड्स ऑन ज्यादा दे देते हो, राइट? मार्क माई वर्ड, देयर आर चांसेस कि वहां पे लोगों की अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। आई थिंक सब लोगों को व्हाट्सएप पता है, व्हाट्सएप पे नए नए फीचर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज दैट इज द रीजन वी आर मोर एंगेज इन द व्हाट्सएप, राइट? आई थिंक अभी सबने देखा भी होगा, स्टेटस के ऊपर आप लोग अपने वीडियो, सॉरी, सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। आई थिंक सब लोग ऑब्जर्व करें व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस में जो आप डालते हो उसमें साउंड भी ऐड हो जाती है, म्यूजिक भी सर ऐड हो वॉइस जाता नहीं है। आ रही। यस, यस सर, अब आ गई। Now हाँ, audible. यस राइट। सर। तो दैट इज द रीजन, हम लोग व्हाट्सएप को भी नहीं छोड़ पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप पे इतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी मार्केट में आ चुकी है कि लोग बहुत ज्यादा से यूज कर रहे हैं, और दैट इज द रीजन आज के टाइम में वी कैन से कि बंदे के पास हो सकता है बंदा मैसेजेस ना पढ़े, लेकिन व्हाट्सएप डेफिनेटली पढ़ा। दैट इज द मेन रीजन। आज के टाइम में हर एक कंपनी, व्हेन वी टॉक अबाउट लिंक्डइन, वी टॉक अबाउट ट्विटर, और व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा, राइट? सो ईच एंड एवरी कंपनी, हर एक अपनी इंटरफेस को इतना एनहांस कर रहे हैं सो दैट कस्टमर का रिटेंशन बढ़ रहा है। दैट इज द रीजन, मार्क माई वर्ड, दैट इज द रीजन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट, राइट? पहले हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ फेसबुक की बात करते थे, राइट? हम लोग गूगल एड्स की बात करते थे, मोर और लेस इजी करके, फिर हम लोग फिर इंस्टा पे शिफ्ट हुए, फिर हम लोग ट्विटर पे शिफ्ट हुए, देन वी आर नाउ ऑन लिंक्डइन, इवन स्नैपचैट एज वेल, राइट? ओके, वन मोर पॉइंट आई जस्ट वांट टू ऐड, जो मैं अभी बीच में बोल भी रहा था, व्हेन आई वाज इन यूएस, मार्क माय वर्ड, देयर आर बहुत सारे लोग हैं, राइट? दे आर जस्ट यूजिंग स्नैपचैट, दे आर जस्ट यूजिंग अ लिंक्डइन, राइट? नो वन इज देयर यूजिंग अ फेसबुक, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, इंस्टा भी मैंने बहुत कम लोगों को यूज कर देखा, ईच एंड एवरी पर्सन वाज देयर, दे आर जस्ट यूजिंग स्नैपचैट एंड लिंक्डइन। बहुत कम लोग हैं जो फेसबुक भी यूज करते हैं। दे आर वेरी फास्ट मूविंग कंट्री, देन डेफिनेटली वहाँ पे भी बहुत जल्दी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है चीज़ों के अंदर। दे आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप देयर, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो आप देखते हैं, जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर भी
धीरे धीरे करके चीजें बहुत चेंज हो रही हैं, लेकिन हाँ, आज के टाइम में अगर आपको याद होगा, व्हेन एआई वाज स्टार्टेड, everyone is said कि हम लोग एआई यूज नहीं करेंगे, एआई इज लाइक it is like cutting the jobs, it is like it is kind of it is kind of a generating copy content, but now everyone is using AI. I think सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, everyone is using AI. Yes, no? And there, Yes. Yes, sir. also there is no duplication Yes, cost. sir. Right? Yes, sir. even I think each and every person had observed, जब आप जीमेल पे जाते हैं, जीमेल के अंदर भी इन्होंने अपने अपने जेमिनाई को इनबिल्ड कर दिया. यस, आई थिंक सबने देखा है. यस, एनीवन ऐड? Yes, sir. यस, ओके. यस, रिचा, सिमी, Yes, स्वीटी. sir. यस, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? हैंड रेज है आप लोग. Yeah, actually, sir, I was saying the same point which I think another person has mentioned. Okay, Global great. versus local approach. Okay, okay, great. Okay, so सिमी सॉर्टेड है, स्वीटी सॉर्टेड अभी तक का? Yes, sir. यस, ओके. ओके, ओके. व्हेन वी से कि जेमिनाई ऐड हो चुका है जीमेल के अंदर, वी कैन से अभी मैं आपको लिंक्डइन पे भी दिखाऊंगा. लिंक्डइन के अंदर भी ऑडियंस जब हम लोग बिल्ड करते हैं, वहां पे भी उसने एक एआई ऐड कर दिया. बट यस, व्हेन वी टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट प्रोसेस, हम लोग वो सारा का सारा अपने एंड से ही करेंगे. वी आर नॉट डिपेंड ऑन द इंटरफेस, राइट? सो ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास और बिफोर स्टार्टिंग लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट, आई थिंक सब लोगों ने फेसबुक ऐड अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, राइट? सबको पता है फेसबुक एडवर्टीजमेंट क्या है, व्हाट इज मेटा, Yes, sir. right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Right? sir. Yes, Okay, brother. that's great. Everyone knows what is audience. Everyone knows what is location centric. Everyone knows we can target the we can niche target audience. We can exclude the audience as well, right? These are the main point which you can see in LinkedIn के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा अभी. ठीक है? Okay. So before starting, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें. Make sure everyone should have very good profile over the LinkedIn, right? Just because of it is a branding purpose, so it should be very clear कि what you are doing in your current organization. The title should be very clear. What is your roles and responsibility, and what is your main KRA in the current organization. I think it is very clear. The title should be very clear in your profile. Then anyone can explain what is the reason behind why title should be very clear? Anyone? Yes. Sir, so that the person who are coming on our profile can get what our role is and what we are actually doing. Okay. 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 Anyone further? मैं Or the एक चीज people ऐड of कर the रहा हूँ. same Make background sure. can connect with you. Okay, sorry. Please अनम बताइए क्या कर रहे हैं? People of the same background can connect with you. Okay. ठीक है. Further, yes. Make sure please इसे connect करिए अपने digital marketing से. Please. If Yes. we apply for any job and something, so when HR or the person comes to your profile, they will get clear answers like what is your profile, what is your background, your skills and experience. It will better help to find a job according to Okay. ठीक है. Yes. Simi, Richa. Sir, better scrutiny of the people will be like very easy for HRs and other people who are basically looking for same kind of profile. Yes, Tanishka, Simi, further. Yeah, first off, LinkedIn is used for a personal branding, so people can know what are our jobs and responsibility. First of all, second of all, so we can connect with people like our colleagues or somebody in a similar field. And third, if somebody search up the word, for example, digital marketer, and our profile is interacting with people, it can show up easy. That will help us interact and get better job opportunities. Okay. किसी ने भी अभी तक मेन पॉइंट जो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अभी तक कोर्स, राइट? बहुत सिंपल Sir, क्वेश्चन. may I? Yes, please. So first की पहले तो ये कि first impression is very important. Second one is build and trust intensely and attract the right audience कि हमें अगर कोई connections है तो right audience के लिए होता है और communication very values quickly होता है. Okay. ठीक है. LinkedIn title shows what are the words we are choosing to express ourselves, because lots of people are uploading own title, but what are the unique words we are
choosing to express ourselves. This shows our ability to how to choose the word for current our performance as a digital marketer. Okay. Okay, ठीक है ठीक है. ओके, सो मैं जो चीज़ सुनना चाह रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से, लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिए. माय मेन पॉइंट, जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, मेरा टाइटल के अंदर मैंने ये बहुत प्रिसाइजली हाईलाइट करा. किसी ने ये चीज़ नहीं बोला दीज आर द मेन कीवर्ड्स. किसी ने भी नहीं बोला दीज आर द मेन कीवर्ड्स, राइट. सबने ये चीज़ बोला, यस रिक्रूटर ढूंढेंगे प्रोफाइल मिलेगा, एग्री. बट किसी ने ये चीज़ नहीं बोला कि हाँ दीज आर द कीवर्ड्स. मार्क माय वर्ड, आई थिंक सबने एसईओ करा. यस, से यस नो. Yes, sir. राइट. Yes, sir. एसईओ Yes, में sir. सबने पढ़ा है, H1 Yes. H2 H3 सबने पढ़ा होगा. Yes, sir. Yes, sir. सो इट इज काइंड ऑफ I माय think so. H1 यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं यहाँ पे H1 की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि H1 ही है मेरा, लेकिन आप इस चीज़ को समझो, ये मेरा अभी टाइटल जो है एक ऐसा हेडिंग की तरह काम कर रहा है. तो दैट मीन्स इसके अंदर जो मैं कीवर्ड डालूंगा, ये कीवर्ड जब कोई बंदा या कोई जिसने भी अभी ऐड भी करा था, रिक्रूटर वर्ड बोला था, जब कोई बंदा यहाँ पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटर करके, तो डेफिनेटली उस केस में मेरा प्रोफाइल उठ के आएगा. तो दैट इज अ बेसिक मॉडस ऑपरेंडी जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग यहाँ पे एसईओ करने बैठे हैं, राइट. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा. बट जब मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ ना कि आप लोग अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स इसके अंदर भी एसईओ का लॉजिक लगता है, लिंक्डइन के ऊपर भी. दैट मीन्स आपका कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, आपका कंटेंट इस तरीके से लिखा होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आपका ये सर्चेज में उठ गया. आई थिंक इट इज क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ. यस नो. कीवर्ड्स का Yes, रोल sir. है, यस सर. कीवर्ड का रोल है इसके अंदर बॉस. आप अगर गूगल की बात करो, आप अगर किसी सर्चेस की बात कर रहे हो, गूगल पे उठ के भी आएगा आपका प्रोफाइल. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ, अपना कीवर्ड डाल के सर्च Yes. करूंगा, तो डेफिनेटली मेरा प्रोफाइल भी उठ के आएगा, क्योंकि मैंने इसे ऑप्टिमाइज करा हुआ है, राइट. तो मेक श्योर करिए, जब हम लोग देखिए, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट, तो लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट के अंदर आई थिंक ये चीज़ सबको पता है. मेटा के अंदर भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा, व्हेन वी डू एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट ना, बिफोर बिफोर एग्जीक्यूटिंग आवर एडवर्टीजमेंट, वी बिफोर ईच एंड एवरी टाइम वी डू आर ऑर्गेनिक एक्टिविटीज, राइट. हम लोग अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, वी ऑप्टिमाइज आवर पेजेस, वी ऑप्टिमाइज आवर पोस्ट, एवरीथिंग, राइट. सब लोग एग्री कर रहे हैं. इन अ सेम सिनेरियो, जब हम लोग लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई बिफोर डूइंग दैट, राइट, हम लोग अपने पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं. पेज कैन बी, बहुत ध्यान समझिएगा, पेज कैन बी आर कंपनी प्रोफाइल और आर ओन प्रोफाइल, राइट. एनीथिंग, अगर हम लोग जिसे भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इट शुड बी ऑप्टिमाइज. जैसे कि ओके, जिस पे भी हम लोग एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हैं, इट शुड बी ऑप्टिमाइज. ईदर इट कैन बी अ कंपनी पेज और इट कैन बी आर ओन प्रोफाइल. आई थिंक इट इज क्लियर. यस नो. Yes, यस sir. सर. राइट. Yes, sir. और आई थिंक सबको समझ में आ रहा है अभी तक का सेशन, राइट. यस नो, जल्दी से चैट पे एक्नॉलेज करिए. यस सर. चैट पे एक्नॉलेजमेंट प्लीज, सो दैट मैं एक बार चेक कर दूं सब किस किस का पार्टिसिपेशन है. चैट पे एक्नॉलेजमेंट जल्दी से. ठीक है. ओके, मोस्ट ऑफ सभी ने थम्स अप कर ही दिया. ठीक है, डन है. अब एक सही में क्वेरी रेज कर लेता हूँ एक बार, किसी का आया हुआ. यस सिमी, आपका हैंड रेज है, बताइए सिमी. सिमी. ओके. अब हम लोग जब हम लोग ये चीज बोल के चल, यस है ना, बोलिए. सर मुझे पूछना था कि हमें कितने टाइम में अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपना लिंक्डइन पेज. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इधर इट इज अगर आप जॉब हंटिंग के लिए भी जा रहे हो, या किसी कंपनी के लिए लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करें, तो फ्रॉम द डे वन अपने पेज को ऑप्टिमाइज करिए. And sir, if we don't want to run ads, then generally कंपनी पेज और प्रोफाइल. profile नहीं page. नहीं, फिर तो ऑप्टिमाइज हर हालत में करना है ना. अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं भी करें, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलेगा. तो आई Right, थिंक right. फ्रॉम द डे वन से स्टार्ट करिए. ये चीज़ आप लोगों ने फेसबुक में भी पढ़ा होगा, ये चीज़ आप लोगों ने वेबसाइट में भी पढ़ा होगा, कि फ्रॉम डे वन अपने बेसिक कंप्लीट करिए. राइट. Yes. राइट. ओके, खुशी. यस, हैंड रेज आपका. यस खुशी. So sir, अगर हम अपना पेज ऑप्टिमाइज करते हैं, so on a daily basis or after some time. ओके, एसईओ में आई थिंक ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी. कोई आंसर करेगा इस चीज़ का? Yes. Sir, SEO is a regular doing thing. Yeah.
ओके, देखिए मैं एक चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने एक बार पेज ऑप्टिमाइज कर दिया, आप हर बार उसे दोबारा ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे। अगर वो रैंक आउट नहीं हो रहा, इन दैट केस आप उस पर ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस लगाते हैं। एल्स जब तक वो सही से काम कर रहा है, कुछ टाइम के लिए आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके अगर उठ रहा है, दैट इज ओके। नहीं उठ रहा, फिर आप एक्टिविटी करते हैं। ये नहीं कि आप लोग दोबारा से बार बार उसमें चेंजेस कर रहे हैं। आई थिंक सबको पता होगा, naukri.com पे ये फीचर है कि जब आप उस पर हल्का डॉट चेंज करते हैं तो वो दोबारा से उसमें चला जाता है, अपडेट में चला जाता है। तो देयर आर चांसेस कि उस केस में आपका प्रोफाइल जल्दी रैंक कर जाए। लेकिन लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। आप कंटेंट एक बार डालिए अच्छे से, ताकि वो धीरे धीरे बूस्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप उसे शॉर्टकट तरीके से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन यस, मोरलेस ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप लोग उसके अंदर कीवर्ड्स का प्लेसमेंट अच्छे से करें। सारा गेम कीवर्ड्स का है। इट शुड बी वेरी क्लियर कि आप कहाँ डाल रहे हैं और क्या कंटेंट डाल रहे हैं। अभी क्लियर है? यस, नो? Okay, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. ओके। अब एक चीज़ और मैं पर्सनली हाईलाइट Excuse me, हाईलाइट करूंगा sir. इसके अंदर। यस। Sir, the content that we are posting should be according to our profile or whatever trend going in the industry. No. When we talk about our company page, it should be go with the trend, right? When we talk about our own profile, it should be our KRA, it should be our roles and responsibility based. Got it? Yes, sir. ओके, ओके। सो व्हेन वी सी जब मैं किसी भी कंपनी का पेज देख रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जोमेटो का पेज आपको शेयर कर रहा हूँ, चैट पे एक बार गो थ्रू करिए जल्दी से। सीधे डाइव करते हैं प्रोसेस के अंदर। जोमेटो का पेज खोलिए, ऑब्जर्व करिए चीजें क्या क्या है, फिर आते हैं पॉइंट पे सीधा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो एक मिनट रुकिए, किसी ने ऐड कर, चीज़ें बहुत बदल रही हैं, मार्क माई वर्ड। मैं जैसे मैंने अभी आपको बोला, भी मैं भी रिसेंटली बाहर से होके आया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जल्दी ड्रास्टिक चेंज आएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि बाहर चीज़ें बहुत अलग तरीके से हो रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिखेगा मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है चीज़ें, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। और जिस समय चेंजेस आएंगे, तो आप देखोगे कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। प्रोसेस बिल्कुल अलग है इन कंपैरेटिव इंडिया वर्सेस यूएस। सारे प्रोसेस अलग हैं, इंटरफेस अलग है। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अभी काम कर रहे हैं। चीज़ें बहुत एडवांस है मार्केट के अंदर बाहर। ओके, सो जोमेटो गो थ्रू करिए जल्दी से प्लीज। जोमेटो। ओके, मेरी वॉइस सही है अभी? Yes, वॉइस sir. क्लियर है? ओके, एक काम करिए प्लीज। अगर किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट रखिएगा, शायद इको क्रिएट हो रहा है एक बार। ओके, यस, जोमेटो गो थ्रू करिए प्लीज। और कोई भी कंपनी और ले लेते हैं हम लोग। आई थिंक अगर ये नेम सही है तो। गो थ्रू करिए प्लीज जल्दी से। और एक लिंक मैं आपको और दे रहा हूँ, जूसी केमिस्ट्री द कंपनी, इसका भी पेज एक बार गो थ्रू करिए लिंक्डइन के ऊपर। दोनों को ओपन करिए प्लीज और ध्यान से ऑब्जर्व करिए जल्दी से। एंड मेक श्योर प्लीज ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि नॉर्मली देख लिया कि दे आर डूइंग पोस्टिंग या कंटेंट डाल रहे हैं बहुत सारी, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को। थोड़े अच्छे पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। प्लीज मार्केट के हिसाब से समझिए, मार्केट चल क्या रहा
ओके, पहले स्टार्ट करते हैं जोमेटो से। एनीवन? जोमेटो में फाइंडिंग्स क्या आप लोगों की? Sir, Zomato is a food serving company, but उसने अपने प्रोफाइल में कीवर्ड डाला है कि टेक्निकल सपोर्ट ऐसा कुछ डाला है, बट जो ये दूसरी सेकंड कंपनी है इसने सिर्फ अपना प्रोडक्ट के ही कीवर्ड्स डाले हैं। राइट, ठीक है, मेक सेंस। फर्दर? ठीक है रिचा, थैंक यू। यस, फर्दर? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, मेक श्योर प्लीज़, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, ऑर्गेनिकली शुड बी प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं किसी भी कंपनी के पेज को बोल रहा हूँ, कंपनीज अपनी पेजेस के ऊपर कंटेंट डाल रही हैं, फोटोग्राफ्स डाल रही हैं, वीडियोस डाल रही हैं, राइट। और आई थिंक सबको पता भी होगा, जब मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, कंटेंट कैन बी योर टेक्स्ट, योर वीडियो, योर इमेजेस, राइट, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन यस, कंपनीज उसके अंदर ब्रांडिंग अच्छे से कर रही हैं ताकि एटलीस्ट रीच आउट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को। और आई थिंक सबको पता भी होगा, अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रही है तो उसका ब्रीफिंग भी लॉन्च करती है, उसका यूज केस भी लॉन्च करती है। आई थिंक सब लोग चेक कर पा रहे हैं कि कैसे यूज कर रहे हैं। अगर पिगमेंटेशन काइंड ऑफ है तो आपको स्किन पे कैसे यूज करें, सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है इसके अंदर, राइट। तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के इन हाउस एक्सप्लेन करती है, राइट। मेक श्योर, आई थिंक ये चीज आप लोगों ने इंस्टा फेसबुक के अंदर भी देखा होगा। सेम चीज आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर भी देखने को मिल रहा है कि कंपनीज आर यूजिंग अ सेम सेम एस्पेक्ट। यहाँ पे भी वो लोग अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है। ऑर्गेनिकली आप लोग अपने को एनहेंस कर रहे हैं दोनों इंटरफेस के ऊपर, चाहे मेटा की बात हो चाहे मैं लिंक्डइन की बात हो। यस, नो? यस, ओके। अब एक चीज और, Yes, sir. एक चीज बिल्कुल क्लियर रखते हैं, जब हम लोग एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट में जा रहे हैं, मेक श्योर प्लीज, आई थिंक सबको पता होगा ये एक ट्रेंड आया था मार्केट के अंदर, ये क्रिएटिव किसी ने देखा पहले इस तरीके से? यस सर। Yes, sir. राइट, देखा Yes, होगा। sir. सो अभी किसी का क्वेरी भी था, सॉरी किसी ने बोला भी था कि वी गो विद द ट्रेंड, और हम लोगों को नया कैसे कंटेंट डालना, राइट। तो आई थिंक सबको पता है कि जब मैं सबको पता है ये चीज कि गो विद द फ्लो, राइट। जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। देयर आर चांसेस कि उस केस में बहुत जल्दी वायरलिटी आती है, आपके कंटेंट को बहुत जल्दी बूस्ट मिलता है, राइट। अभी रिसेंट ट्रेंडिंग क्या है मार्केट के अंदर? एनीवन? रिसेंट ट्रेंडिंग क्या है? Ghibli. गिबली, राइट। गिबली तो सबने लगाया होगा व्हाट्सएप पे स्टेटस। फोटोग्राफ भी सबने लगाई होगी। नो सर, Yes, नहीं sir. नो लगाई। सर, हमने नहीं लगाया, हमने नहीं लगाया। सो मेक श्योर, सो गिबली के आई थिंक, बाद ये ट्रेंड किया था। हाँ, गिबली के बाद भी ट्रेंड गिबली किया, के राइट। बाद ये ट्रेंड किया जो आपने अभी ओपन कर रखा था। राइट, ये इसके बाद ट्रेंड हुआ था। देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो ना, आपको छोटी छोटी चीजें पकड़नी पड़ेंगी। आई थिंक सबको पता होगा, सारी कंपनीज ने गिबली यूज करा है, सारी कंपनी ने मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आपने पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे, इस तरीके से इमेजेस भी यूज करी है प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। मेरा पॉइंट सिंपल सा यही है कि मेक श्योर कि आप लोग ट्रेंड को फॉलो करिए, राइट। ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, योर प्रोडक्ट शुड शोकेज योर ट्रेंड, राइट। वो दिखना चाहिए कि आप लोग ट्रेंड को फॉलो करें, ताकि एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट की सेल एनहांस होगी, राइट। ये ऑर्गेनिकली बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को एडवर्टीजमेंट जाना, आई थिंक एडवर्टीजमेंट सबको पता है, जहाँ पे आप लोग पैसा लगाते हैं, यू रन द एड, राइट, यू जनरेट द लीड। तो वो सिंपल प्रोसेस है वाला, राइट। गो विद द फ्लो, ताकि एटलीस्ट आपका रीच आउट अच्छा मिले, आपको कस्टमर एंगेजमेंट अच्छा मिले, ठीक। आई थिंक अभी तक का सेशन सबको क्लियर है। से यस, नो? फिर आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट। Yes, sir. सॉर्टेड है? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके, सो अब हम लोग जब इन सिनेरियोस को लेके चल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं, हम लोग ये चीज बोल के चल रहे हैं कि मेरे को पोस्ट वगैरह करना, तो डेफिनेटली जब मैं यहाँ पे अपने प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं अपने प्रोफाइल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने पेज पे गया, एक रैंडम सिनेरियो लेके चला, इट इज नॉट अबाउट माय प्रोफाइल, मैं एक रैंडम सिनेरियो लेके चला। हर बंदा चाहता है कि लिंक्डइन के ऊपर उसका पेज अच्छे से शाउट आउट करे, ताकि एटलीस्ट, सॉरी, उसका प्रोफाइल अच्छे से शाउट आउट करे, सो दैट एटलीस्ट कंपनीज उसे पिक कर ले, राइट। सो मेक श्योर, अगर ये चीज शायद तनिष्का आपका क्वेरी था, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उस पॉइंट को। आप लोग कोशिश ये करिए, अपने प्रोफाइल के अंदर आर्टिकल्स डालिए ट्रेंड के हिसाब से, राइट। जो मार्केट में ट्रेंड है, आई थिंक लिंक्डइन के ऊपर सबको पता होगा, आर्टिकल्स आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आर्टिकल डालिए अपने प्रोफाइल के ऊपर, और जब आप कंपनी का पेज बना रहे हैं, तो कंपनी के पेज के अंदर आपको अपने पूरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के को आपको डिफाइन करना पड़ता है। इज इट क्लियर अभी? यस? यस सर। यस सर। राइट, ओके।
So So, जब मैं yes yes है ना sir, which one is better, like direct article post करना LinkedIn पे और या फिर वेबसाइट से शेयर करना? नहीं नहीं देखिए, अगर मैं ये चीज़ बोल के चलता हूँ मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मेरे को ये बोल रहा हूँ कि मेरी साइट का ट्रैफिक अलग तरीके से जनरेट हो रहा है, राइट, मेरे को लिंक्डइन के थ्रू नहीं लेके आना, तब उस केस में मेरी मॉडस ऑपरेंडी ये रहेगी कि मैं अपने से लिंक्डइन के ऊपर काम करूँ। अगर आप चेक भी करेंगे, कंपनी अपने पेज को ही प्रमोट कर रही है ज़्यादातर। तो Okay. ट्रैफिक डिविएट मत करिए हर जगह पर। वेबसाइट को आप ऑर्गेनिकली आप काम कर ही रहे हो, उस पर एसईओ कर रहे हो, उस पर आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो। देखिए, आई थिंक सबको मैं पर्सनली एक चीज़ ऐड करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत सारे टूल्स पे काम करते हैं, हम लोग हाई प्रेशर्स पे हैं। जब हम लोग ये चीज़ बोल के चलते हैं ना कि लिंक्डइन अलग है, इंस्टा अलग है, मार्क माई वर्ड, कंपनीज हर एक पेज के हिसाब से अलग अलग बजट सेगमेंट बना के चलती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू दूसरे पे ट्रैफिक डिविएट करना उसका मेन प्रोसेस है, राइट। कंपनीज ये चेक जरूर करती है कि आई जस्ट एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो जब मैं ये चीज बोलता हूँ कि कंपनीज को यहाँ पे हर एक इंटरफेस के हिसाब से टारगेट्स होते हैं कि लिंक्डइन के थ्रू आपको इतना ट्रैफिक लेके आना है, इंस्टा के थ्रू इतना ट्रैफिक लेके आना है, या गूगल के थ्रू इतना ट्रैफिक लेके आना है। तो मार्क माई वर्ड, यहाँ पे हम लोग का मेन प्रोसेस ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रैफिक डिवाइड करके लेके आना वेबसाइट के ऊपर। लिंक्डइन का एक अलग टारगेट है कि आपको इतने रीच आउट लेके आना है, या इतना ट्रैफिक आपको बिल्ड करना है। बाकी हर एक इंटरफेस का अलग अलग होता है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप किसी सर्टेन इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी के ऊपर डेडिकेट करें। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अभी इन लोगों ने खुद का भी वेबसाइट का लिंक नहीं डाला। ये चीज ऑब्जर्व करिए आप, यस नो, Yes, sir, I have observed राइट, this. यहाँ पे उनका खुद का भी वो नहीं डाला हुआ, राइट। तो ट्राई यही करिए आप लोग कि अगर आप किसी इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, ट्रैफिक डिविएशन पे ज्यादा वो मत फोकस करिए कि हमें सिर्फ डिविएट ही करना है। कोशिश ये करिए उस पेज को या उस प्रोफाइल को इस तरीके से शाउट आउट करिए ताकि वो खुद से ही एक अच्छे से बिल्डअप, ठीक है, ओके। सो जब मैं यहाँ पे इन सिनेरियोज को बोल के चलता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोग आर्टिकल्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो अगेन मेन प्रोसेस जिसकी हम लोग बात करते हैं, दैट इज लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट, राइट। सो जब मैं यहाँ पे गया तो लिंक्डइन एड्स मैनेजर, आई थिंक सबको पता होगा फेसबुक के अंदर भी एड्स मैनेजर होता है, इन सेम सिनेरियो लिंक्डइन के ऊपर भी आपका एड्स मैनेजर होता है, दैट इज कॉल्ड कैंपेन मैनेजर। एक बार मैं एक्स्ट्रा सारी विंडो ऑफ कर लेता हूँ। So, extra. ओके, सो क्विक क्वेश्चन सभी से प्लीज थोड़ा ध्यान से आंसर दीजिएगा। व्हाट इज सीटीआर? व्हाट इज सीटीआर? Click through rate. It's Click through rate. ठीक है, एंड व्हाट इज सीटीए? Call to Call to action. action. Call First to call action. accusation. कॉल टू Call एक्शन, to action. ठीक है। व्हाट इज नीश? नीश ऑडियंस, नीश Targeted audience. टारगेटिंग, Targeted audience. Targeting audience. ठीक है। व्हाट इज लुकलाइक? Lookalike is a Sir, same looking products. Similar Similar audience बनाना. ओके, Similar audience. सिमिलर ऑडियंस, ठीक है जी। सो एड्स मैनेजर अगेन जैसे हम लोग बाकी सारे इंटरफेस की बात करते हैं ना, सेम सिनेरियो लिंक्डइन के ऊपर भी है ऑप्शन कॉल कैंपेन मैनेजर। यहाँ पे भी हम लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्रिएटर्स अपलोड करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग ऑडियंस को बिल्ड करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं पर्सनली अपने हर एक सेशन में ये चीज बोलता हूँ, मेक श्योर कि आपके क्रिएटर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। इट शुड बी वेरी अपील, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने क्रिएटिव को बहुत बहुत मतलब बहुत क्लेशे टाइप का लुक दिया हुआ है, राइट। ये नहीं होना। एक बार प्लीज म्यूट रखिएगा, थोड़ा इको आ रहा है अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो प्लीज। सो ये इंश्योर करिएगा प्लीज आपके क्रिएटिव अच्छे होने चाहिए, राइट। मेक श्योर करिएगा कि
आपके हेडलाइंस अच्छे होने चाहिए, मेक श्योर आपके टाइटल्स अच्छे होने चाहिए। और आई थिंक ये चीज़ सबको पता भी होगा, व्हेन वी सी कि कोई अच्छा क्रिएटिव हमें दिख जाता है इन फीड्स, राइट, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं। और देयर आर चांसेस, अगर क्रिएटिव अच्छा होता है तो उस केस में मेरा क्लिक थ्रू रेट का रेशियो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, प्लीज इंक्रीज इंक्रीज होगा, होगा। इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंश्योर करिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज सिनेरियो। ओके, मैंने आपको कुछ अपने प्रोफाइल के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आई थिंक आफ्टर द क्लास आप लोग फीडबैक शेयर कर सकते हैं। गूगल का लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, किसी ने शायद अभी ज्वाइन करा है, बहुत लेट ज्वाइन करा है इस समय। ठीक है, सो बेसिक इंट्रो पहले, जब हम लोग ये चीज़ बोलते हैं लिंक्डइन के ऊपर 900 मिलियन मेंबर्स हैं ग्लोबली, राइट, दैट इज अ डेटा जो आप लोग इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। हाईली ट्रस्टेड सोशल प्लेटफॉर्म है, मेक श्योर करिएगा प्लीज कि जब मैं ये चीज़ आपको बोल के चल रहा हूँ कि इट इज़ हाईली ट्रस्टेड, सो आई थिंक एनीवन कैन शेयर द कंपैरिजन कि फेसबुक पे लीड का जो मेरे पास रेशियो आ रहा है कंपैरेटिव लिंक्डइन के, वो ज़्यादा अच्छा होगा या बेकार होगा? एनी जेनरिक फीडबैक? बिग अच्छा से ज्यादा होगा। अच्छा होगा, बिकॉज लिंक्डइन पे ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं जो भी, आई मीन अगर कोई जॉब भी सर्च कर रहा है तो इस लेवल तक तो पहुंच ही गया होगा कि हाँ एक अच्छा अकाउंट बना के एक अच्छा अपना प्रोफाइल मेंटेन कर पाए। लेकिन अगर हम फेसबुक पे जाते हैं तो उसपे हर टाइप का ऑडियंस है, उसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें और लोग भी हैं। लेकिन अगर मैं लिंक्डइन की बात करती हूँ तो स्पेसिफिकली उस पे जो लोगों का फोकस्ड माइंडसेट होता है कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर काम यहाँ पर करना है, मतलब आप मेच्योर ऑडियंस कह सकते हो कि लिंक्डइन पे मेच्योर ऑडियंस होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इवन जब हम लोग ये चीज बोल के चलते हैं, स्टार्टिंग में भी कुछ लोगों ने पॉइंटर्स दिए थे, बी टू बी, बी टू सी, मार्क माई वर्ड, लिंक्डइन इज अ टूल जहाँ पे हम लोग बी टू बी भी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे अगर मैं ये चीज बोल के चलता हूँ, आई हैव अ कंपनी, तो मैं अपनी कंपनी की सर्विस अगर मेरे को किसी सेकंड कंपनी को ऑफर करनी है, तो इन दैट केस लिंक्डइन इज अ टूल जो जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, राइट। और आई थिंक सबको ये चीज पता भी होगा कि जब मैं ये चीज बोल के चलता हूँ बी टू बी, तो डेफिनेटली यानी कि मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के लिए एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट का काम करेगा, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करके एक सर्टेन एक एक दूसरा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस है ये। और यस, दैट इज वेरी ट्रू कि फेसबुक के ऊपर बहुत ऑडियंस फेक फेक प्रोफाइल्स भी हैं, राइट। मैं ये नहीं बोलूंगा लिंक्डइन के ऊपर नहीं है, बट यस कंपैरेटिवली ऑफ अडेप्टेशन, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों ने बहुत जल्दी अडेप्ट करा हुआ फेसबुक को, बट यस लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वी कैन से कि यहाँ पे लीड क्वालिटी लिंक्डइन का अच्छा है कंपैरेटिवली ऑफ फेसबुक के। ठीक है, कोई और जना पॉइंट ऐड करेगा, एनीथिंग एल्स? मैं एक स्टेटमेंट और दूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक अभी तक आप लोगों के पास ये जरा सेकंड थॉट आ चुका होगा अभी तक जो मैंने बोला है। लिंक्डइन के ऊपर लीड क्वालिटी अच्छा है कंपैरेटिवली ऑफ फेसबुक। फर्दर कुछ You और ऐड करना चाहेंगे आप? you can find more educated and more professional peoples uh, on LinkedIn rather than Facebook. राइट, मेक सेंस। यस, फर्दर Yeah. बाकी लोग प्लीज, आयुष, देव, दुष्यंत, गगन, हर्ष, हिना, सॉरी काजल, पीयूष, यस, रमनदीप, सांची, संजन, यस, फर्दर कहाँ है बाकी लोग? शिवानी, श्वेता, यस। ओके, सो जब मैं ये चीज बोल के चलूँ, डेफिनेटली आई थिंक सब लोगों के माइंड में एक ये वाला पॉइंट भी रेज हो गया होगा, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर लीड भी मेरा इंक्रीज होगा, राइट। तो यस, लिंक्डइन के ऊपर मेरा कॉस्ट पर लीड ज्यादा है कंपैरेटिवली ऑफ फेसबुक के। आई थिंक ये चीज़ सब लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा जब आप लोगों ने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट भी चलाया होगा, तो फेसबुक Yes. के अंदर आप 10, 20, 50, 60 रुपए का कैंपेन भी चला सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आपको 500 रुपये रखना पड़ेगा, और लीड कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही है लिंक्डइन। So, यस, and sir, यस, even in general, Facebook is free, and LinkedIn, like there is a we can buy premium or something else for LinkedIn, right? यस, 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 डेफिनेटली। Mm. ओके, सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज़ें, और और ढंग से समझिएगा, वैसे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, सो जब मैं ये चीज़ बोल के चलता हूँ, डेफिनेटली मेरे पास इन टर्म्स ऑफ लीड क्वालिटी लिंक्डइन इज फास्टली कंपैरेटिव ऑफ फेसबुक में, और मेटा की बात करें, दो दो चीज़ें बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा आप लोग कि आप लोग 25 अकाउंट आप लोग एक प्रोफाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एंड 5000 कैंपेन्स अलॉन्ग विद 15,000 क्रिएटिव इन ईच प्रोफाइल। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, मतलब ऑल्दो आप लोग गूगल करके भी आपको मिल सकता है, इस पॉइंट को So, नोट कर लीजिएगा।
Sir, will you provide these slides with us? Will you share? हाँ, ये स्लाइड में शेयर कर दूँ, डेफिनेटली शेयर करा Thank दूँ। ओके, ओके, फर्दर अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़, सब लोग थोड़ा ध्यान से, जो जब मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे जब लिंक्डइन को ओपन करते हैं ना, तो एक बार प्लीज़ सब एक बार माइक अगर किसी का ओपन है प्लीज़ म्यूट रखिएगा। जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल के चलते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर यू हैव ऑप्शन कि आप लोग एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, और आई थिंक सबको पता भी होगा, आप लोगों ने फेसबुक के अंदर एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट से पहले, राइट, आप लोगों ने इवेंट्स बनाए थे। इवेंट्स बनते हैं फेसबुक के अंदर, यस सर। राइट, ओके। सो फेसबुक के अंदर जैसे आप लोग इवेंट क्रिएट करते हैं, उस इन अ सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आप लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, देखिए एक चीज मैं आपको पहले दिखा ही देता हूँ, पहले फिर स्टार्ट भी कर रहे हैं प्रोसेस को पूरा। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक रैंडम पेज में ले रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग फेसबुक के अंदर आप लोग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो इन अ सेम सिनेरियो, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लोग यहाँ पे अपने पेज के ऊपर जाके भी इवेंट के सिनेरियोस बना सकते हैं। तो मेक श्योर जैसे आप लोगों ने अभी जोमेटो का पेज देखा, आपने जूसी केमिस्ट्री का पेज देखा, हर एक कंपनी अपने पेजेस क्रिएट करती है, राइट। उन पेजेस के ऊपर अपने आर्टिकल भी डालती है, अपने जॉब पोस्टिंग भी करती है, उस पर अपने इवेंट्स भी अपलोड करती है, अपने पोस्ट भी डालती है। तो डेफिनेटली आपका पेज बना होना चाहिए। और पेज कहाँ से बनेगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं 9 डॉट्स के ऊपर, तो 9 डॉट्स के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कंपनी पेज। दीज आर द 9 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 डॉट्स के नीचे आपको मिल रहा है देयर इज ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट अ कंपनी पेज। आप जब इस पे क्लिक करते हैं, देन यू हैव ऑप्शन कि यहाँ पे जाके आप लोग अपना कंपनी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। इट इज क्लियर सभी को? क्रिएट अ कंपनी पेज, यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। सो आई थिंक अब एक चीज सबको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने जो भी कंपनी के पेजेस देखे, तो उन्होंने वो यहाँ से इस तरीके से बिल्ड करे। इसमें मैं पर्सनली एक चीज हाईलाइट करूंगा, बहुत कम लोग इस चीज को हाईलाइट करते हैं। जब मैं इस कंपनी पेज पे जाता हूँ, मेक श्योर करिएगा प्लीज कि कम एक मेरी वॉइस क्लियर है सबको? Yes, वॉइस sir. यस, ओके। अभी क्लियर है खुशी? ओके, Yes, sir. Now it is ठीक okay. है। जब मैं यहाँ पे कंपनी पेजेस की बात करता हूँ, मेक श्योर करेंगे कि आपका कंपनी पेज का इंट्रो, कंपनी का हेडलाइन एंड कंपनी के अंदर जो भी आप पोस्टिंग कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट बेस्ड ही होना चाहिए, जैसा अभी हम लोगों ने जोमेटो में देखा था, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप लोग कंपनी पेज के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, नहीं। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की ब्रांडिंग करिए, सो दैट एटलीस्ट इसे एक अच्छा बूस्ट मिले, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा ध्यान से, सो जब मैं यहाँ पे अपने देखिए, जब मैं यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर आता हूँ, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एडवर्टाइज। इसमें मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पे कैंपेन या अपने अकाउंट बिल्ड करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, मैं अपने अकाउंट्स के अंदर लैंड करता हूँ एक बार। थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत ध्यान से प्लीज, ठीक है, पेशेंसली, बहुत केयरफुली। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे अपने अकाउंट्स के अंदर लैंड करते हैं, तो आई थिंक सब लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा इन अ फेसबुक, राइट। आप लोगों ने वहाँ पे कैंपेन देखा होगा, एड ग्रुप देखा होगा, क्रिएटर्स वाले सेक्शंस देखे होंगे, आई थिंक गूगल एड्स के अंदर भी देखे होंगे आप लोग, राइट। इन अ सेम सिनेरियो इन अ लिंक्डइन, वी हैव अ hierarchy, we have a campaign group, we have a called campaign, we have called ads, राइट। सो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट पे, राइट, सो क्रिएट के अंदर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड कैंपेन एंड कैंपेन ग्रुप, राइट। तो मेरा ऑलरेडी ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं, तो मैं एक रैंडम अभी कैंपेन पे बिल्ड कर रहा हूँ सीधा। कैंपेन में मैंने क्लिक करा, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। ओके, सो दीज आर द 3 पिलर्स, राइट। व्हेन वी सी कि यहाँ पे अवेयरनेस अवेयरनेस आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा, सेम थिंग इन अ फेसबुक, राइट। और जब मैं यहाँ पे कंसिडरेशन बोलता हूँ, अगेन इट इज इन अ फेसबुक,
एंड जब मैं कन्वर्जन्स बोलता हूँ, अगेन इट इज अगेन ये भी एक दूसरे इंटरफेस के अंदर था, राइट? सो यस, दीज आर द थ्री पिलर्स: अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, राइट? सो अवेयरनेस, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, reach more people with your post, right? Consideration, we have a website visit, we have engagement, we have a video views, right? In conversion, we have a lead generation, talent lead इन्होंने अभी बंद कर दिया, website conversion and job applicants, right? ये चीज क्लियर है अभी? ऑल्दो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तक का क्लियर है? अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, दीज आर थ्री पिलर्स. Yes, no? Yes? Okay. सो जब मैं यहाँ पे अवेयरनेस की बात करता हूँ, आई थिंक सबको पता होगा अवेयरनेस इज लाइक यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस की बात हो रही है. यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल के चल रहे हैं कि मेरे को अपने कंपनी की के पेज के ऊपर अवेयरनेस बिल्ड करनी है, अपनी कंपनीज के बारे में लोगों को बताना है, राइट? तो व्हेन वी क्लिक, देखिए प्लीज. सो मैंने एक ऑब्जेक्टिव इसमें पिक कर लिया एंड देन मैं इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ. ओके, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज. सो अगेन वी हैव ऑप्शन कि मेरे को कैंपेन सेटअप जो करना है, इट शुड बी क्विक और इट शुड बी अ क्लासिक. सभी ने चीज सभी को ये चीज इनफैक्ट पता होगा, जब मैं कैंपेन्स की बात करता हूँ, हम लोग कैंपेन को बहुत खुद ही से सारे पैरामीटर्स को फॉलो करके बनाते हैं. वी डोंट टेक अ शॉर्टकट, राइट? वी डोंट टेक एनी Sir, your audio is not clear. Very low. एक मिनट रुकिए, अभी क्लियर है? यस? No, sir. एक मिनट रुकिए, शायद किसी ने प्रॉब्लम. ओके, अभी क्लियर है? यस, नो? Yes. राइट? Yes, sir. ओके, सो जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल के चलते हैं कि सारे हैंडल्स के ऊपर वी हैव अ टू प्रोसेस, राइट? वन इज एक्सटेंडेड, सेकंड वन इज योर क्विक, राइट? सो इन अ सेम सिनेरियो, लिंक्डइन के ऊपर भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं. वन इज दैट इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट है हमारे पास, राइट? एंड सेकंड वन इज योर मैनुअल प्रोसेस, जिसे हम लोग क्लासिक भी बोलते हैं. एनीवन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस? आई थिंक सबको पता होगा, फेसबुक के अंदर भी देयर आर टू ऑप्शन, इवन इन अ गूगल यस एड सर. देयर आर टू ऑप्शन. यस, एनीवन? यस सर. सर, जब एक्सेलरेट पे करेंगे तो लिंक्डइन अपने हिसाब से ऐड चलाएगा और अपने हिसाब से ही ऑडियंस लेगा. जब हम क्लासिक में करेंगे तो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं सारी चीज़. ओके, और कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे आप लोग? कुछ और पॉइंटर्स? Sir, accelerated में some settings which is done by LinkedIn, and LinkedIn give us some suggestions. And in class, all the things done by us, like manually. We can just like we can add things, settings, captions, all these things. We can like choose headlines and all. So we can do by on your on. ओके, ठीक है, ठीक है. ओके, सो यस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स डेफिनेटली क्विक वाले के अंदर काफ़ी कटआउट होते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हटे हुए होते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिक, दैट इज एक्सटेंडेबल प्रोसेस, राइट? सारे पैरामीटर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हर चीज़ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन टिल द एंड हर चीज़ हमें अपने कंट्रोल में रखना है. देन ऑलवेज आई थिंक सबको पता होगा, वी ऑलवेज गो विद द एक्सटेंडेड और क्लासिक प्रोसेस, ताकि एटलीस्ट सारा कंट्रोल हमारे पास रहे. हम लोग वी डोंट वांट कि चीज़ें खुद से चलती रहे, फिर अदरवाइज हमारा हमारा यूज केस क्या है, राइट? हम लोग कर क्या रहे हैं फिर उस केस में, राइट? हम लोग क्लासिक पे क्लिक करते हैं, देन वी क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, सो वी हैव ऑप्शन ओके, सो इन अ कैंपेन वी हैव ऑप्शन कि यहाँ पे हम लोग नेमिंग देते हैं. तो जस्ट एक एग्जांपल, मैंने इसका एक नाम रख दिया जोमेटो, ठीक है? मैंने इसका नाम है कि जोमेटो, और आज का एक रफ रख देते हैं, लीड कैंपेन रख देते हैं, ठीक है? और डेट डाल देते हैं ताकि एटलीस्ट मेरे को याद रहे. अभी के लिए फिर मैंने डेट नहीं रखा, मैं लीड कैंपेन रखूँ, दैट इज एलसी एंड देन जोमेटो. अब अगेन सबको पता होगा, हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव को इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं. इन सेम सिनेरियो, लिंक्डइन के ऊपर भी यू हैव ऑप्शन कि आप लोग इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है? फर्दर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड बजट.
मेक श्योर करिएगा, देखिए कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑफ रखते हैं, सो मेक श्योर करिएगा। सो मेक श्योर करेंगे हम लोग लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट के अंदर जो मेरा बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला सेटिंग है इसे मैं ऑफ रखूँ। ठीक है, वी डोंट वांट कि वो अपने हिसाब से चीज़ें बिड स्ट्रैटेजी करे, वो अपने हिसाब से मॉनिटर करे बजट को, वी डोंट वांट। हम लोग खुद से करेंगे, हम ऑटोमेटिक बेस पे नहीं डालते इसे। ठीक है, budget is no sorry campaign is scheduled, yes, we can schedule the campaign जब भी मेरे को campaign चाहिए, it can be for the any time, राइट। लेकिन मेक श्योर करेंगे जब भी मेरे को कैंपेन चलाना है उससे 3-4 घंटे पहले मेरा कैंपेन बन के रेडी हो चुका हो, अप्रूवल के लिए जा चुका हो, ये जरूर इंश्योर करेंगे। ये नहीं कि मेरे को अभी 4:30 पे कैंपेन चलाना है, देन आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई कैंपेन, फट मैंने सारी चीज़ें करी, एडिट करा, डिटेल डाली, देन आई जस्ट एक्टिवेट द कैंपेन, ऐसा नहीं करना, राइट। वी ऑलवेज गिव अ टाइम, राइट। कैंपेन सेटअप पहले से रखिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी देयर आर चांसेस कि कैंपेन आपका रिजेक्ट हो जाता है, देयर आर चांसेस कभी कैंपेन आपका ट्रिगर नहीं होता, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज, राइट, कि आपकी जो भी प्रोपोर्शनेट एक्टिविटीज हैं जो उसके आगे लाइंड अप है वो शायद डिले हो जाए, तो दैट इज अ रीजन। अपने कैंपेन को पहले सेटअप करके रखिए रादर देन जिस समय चलाना उसी समय लेके बैठे। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? यस, ओके। इवन दो एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि यू ऑलवेज गिव अ मेन फोकस टू योर ऑडियंस, राइट, रादर देन गिविंग द टाइम टू एंटायर इंटरफेस की इसमें इतना ध्यान से करना, ये सब कुछ नहीं करना। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है अपने ऑडियंस के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए अपने ऑडियंस के ऊपर, राइट। ये नहीं कि हम लोग बाकी सारी चीजों में लगे रहे। अगर ऑडियंस आपका अच्छा बन गया, आपने अच्छे से क्रिएटिव आप में डाला हुआ, डेफिनेटली आपका कैंपेन अच्छे से रिजल्ट देगा, राइट। तो जस्ट एक एग्जांपल, अभी के लिए मैं कैंपेन को एज इट इज रख रहा हूँ, इसी टाइम पे शेड्यूल कर रहा हूँ, मैं इसे अभी कोई रीस्केड्यूल नहीं कर रहा, एंड देन आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। आप थोड़ा ध्यान से समझिए जो चीजें अब आने वाली है, ठीक है। सो जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था दैट देयर इज अ टूल कॉल्ड एआई पावर्ड, यहाँ पे खुद से ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट करेगा, सारी चीजें अपने हिसाब से करेगा। अभी के लिए हम इसे नहीं यूज कर रहे क्योंकि हम लोग खुद से पूरा सेटअप करें। अगर करना होता हम कोई वाला प्रोसेस लेते रादर देन हम लोग एआई प्रोसेस पे जा रहे हैं इसके, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे अपनी कंपनी को नाम देंगे, कंपनी की यूआरएल को सेटअप करेंगे ताकि एटलीस्ट जो भी मेरे कैंपेन के हिसाब से ऑडियंसेस है वो मेरे को दे सके, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिए प्लीज, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ जोमेटो, देन मैं यहाँ पे उसका लिंक, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड और चैट पे आप क्वेरी डाल के रख दीजिए, मैं अभी पिक कर लूंगा उसे, ठीक है। सेव करो। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड ऑडियंस, राइट। सो ऑडियंस के अंदर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड सेव्ड ऑडियंस, और एक मिनट, यस, we have option called saved audience, we have option called audiences, and we have auto targeting। okay, so one by one discuss करते हैं। what is saved audience? आप लोगों ने कहीं किसी इंटरफेस पे पढ़ा होगा जो हम लोग पहले से सेव करके रखते हैं, यस, नो? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस, जिसे हम लोग फेसबुक के अंदर भी बोलते हैं उसे, राइट। सो ये वो ऑडियंस हो गए जिसे हम लोग सेव करके रखते हैं, जिसे हम लोग कैंपेन के में कॉल करा सकते हैं। अगर मैंने कोई इस इंटरफेस के अंदर पहले से बना रखी होगी तो डेफिनेटली मैं इसे ड्रॉप डाउन के थ्रू अपने कैंपेन के अंदर कॉल कर सकता हूँ, राइट। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से ये चीज डिस्कस करा था कि लिंक्डइन हैज अ वेरी गुड ऑडियंस, we can target the audience based on you know uh, based on their designation, we can target the audience based on their demographic location, we can target the audience based on their interest। तो यस, ये सारी चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं इस ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक चीज देखिएगा, व्हाट इज दिस? member with the bachelor degree, members with expert in Bitcoin, members in HR professionals, or event planners, we have a financial advisor. So these are the, I think everyone can understand ki, these are the audience who are into a these level, और उनका डेजिग्नेशन ये, their profile is this, right, वो उस ऑडियंस को यहाँ पे मेरे को
सेगमेंट करके दे रहा है लिंक्डइन। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो, यस, ओके। सो आई थिंक अगर मेरे को बहुत बहुत जल्दी से ऑडियंस को पिक करना है कि जस्ट एक एग्जांपल कि मेरे को फाइनेंस की कैंपेन चलाना है, मैं सिंपल सा लूंगा, फाइनेंशियल एडवाइजर को लूंगा, ये मेरी ऑडियंस मेरे पास आ गया, तैयार हो जाएगी। अब दीज आर द टेम्पलेट्स, राइट? इसके अंदर ऑलरेडी वो ऑडियंस डली हुई है जो इन सेक्टर्स के अंदर काम कर। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस। सो उन्होंने यहाँ पे क्या करा, ये Yes, sir. बंडल्स बना के रखे हुए कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने लिया बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पिक करा, एंड देन यू जस्ट एक्टिवेट योर कैंपेन और आपको रिजल्ट देना वो शुरू कर दें। तो यहाँ पे बंडल्स बने हुए हैं, टेम्पलेट्स बने हुए हैं, राइट? एक मिनट रुकिए। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास बंडल्स हैं, तो मैं अपनी जिस ऑडियंस को लूंगा उसे टारगेट कर सकता हूँ इस सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन यस, अगेन जब हम लोग इतना नैरो डाउन कर रहे हैं या इतना नीच जा रहे हैं, तो हम लोग पूरे कैंपेन को खुद से टारगेट क्यों नहीं कर रहे, खुद से ऑडियंस पिक क्यों नहीं कर रहे, राइट? सो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप लोग ऑडियंस को एक रेडीमेड टेम्पलेट्स के हिसाब से यूज कर सकते हो, और यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी मैं बताऊंगा। देयर एजुकेशन, देयर डेमोग्राफिक, देयर कंपनी लेवल एटसेट्रा, राइट? बंदा जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उस कंपनी बेस आप उसे टारगेट कर सकते हो, बंदे के डेमोग्राफिक बेस पे, एजुकेशन बेस पे, जॉब एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग बंदे को टारगेट कर सकते हैं, राइट? अभी तक कोई डाउट किसी का? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन स्पीक आउट। यस, एनीवन? अभी तक का क्लियर है? यस, सॉर्टेड। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट पे जल्दी से, सी यस, नो। सेशन क्लियर अभी तक का? यस, Sir, यस, hello. यस, है ना? Sir, how much time LinkedIn ads will take to approve? हार्डली डिपेंड्स कि आपने कैंपेन कैसे बनाया है, मतलब कोई एक स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं। Like Facebook or Google ads will take 12 to 24 hours, I think. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ना एक स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब अगर मैं ये चीज़ बोल के हर कोई बोल के चलता है कि आप पहले से बना के रखो, लेकिन डिपेंड करता है उनके एल्गोरिथम पे। अगर आपकी सारी चीज़ें सही है तो जल्दी अप्रूव हो जाता है, 1 डे के अंदर अप्रूव हो जाता है। लेकिन बेंचमार्क आप यही लेके चल सकते हैं 12 to 24 आवर्स का। And so one more thing, if we are like making audience, so can we direct add, like if we want to add 1 or 2% in our audience, so can we add directly, यस, like यस, यस, using their profiling? नहीं, जैसे जैसे हम लोग फेसबुक के अंदर करते हैं ना, ऑडियंस बना के उसे कैंपेन के अंदर कॉल करा सकते हैं। Sir, I know वैसा ही होता है, but I am asking, is there any option कि हम लोग उनका प्रोफाइल लिंक डाल दें वहाँ पे और वो भी हो जाए? नो, मतलब बंदे का प्रोफाइल? यस सर। हाँ, उसमें एक ऑप्शन आता है डेटा अपलोड का। डेटा अपलोड कर दिया आप, जैसे हम लोगों ने फेसबुक के अंदर देखा होगा, शीट अपलोड करते हैं कैंपेन के अंदर। तो अगर मेरे पास बंदे का डेटा है, मैं डेटा अपलोड करके भी उसे टारगेट कर सकता हूँ। यस, ओके सर। ओके। सो थोड़ा सा और ध्यान से समझिए प्लीज, मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ उसमें, थोड़ा ध्यान से प्लीज, ठीक है? देखिए, सो यहाँ पे अब हम लोगों ने काफ़ी सारे सिनेरियोज देखे कि मैंने बंदे को अभी एक उसके टेम्पलेट जो ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं उस बेसिस के पे ही मैं कैंपेन चला सकता हूँ, और वो जो कि मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट? अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, दीज आर द फोरकास्ट रिजल्ट, राइट? ये चीज़ आई थिंक इवन फेसबुक में भी मिलेगा, गूगल एड्स के अंदर भी है, और बहुत सारे हैंडल्स में आपको देखने को मिलता है, राइट? सो दीज आर द फोरकास्ट। सो these are actual, or these are the kind of a variation जो मेरे को कैंपेन में देखने को मिल सकते हैं। एनीवन? These are the fixed or these are the variations? These are the variations. These are the variations. It's not a fix. Yes. Okay, so Yeah. अगर मैं ये चीज़ बोल के चलूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पे एक टूल मेरे को बोल रहा है कि मेरे को जो क्लिक पड़ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक 600 रुपये का पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और एक जगह 1200 बोल रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे को वेरिएशन मिलेंगे। वो रेंज मेरे को देता है कि इतने से इतने तक का आपको क्लिक आउट मिल सकता है। यस, दीज आर द रेंज। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज।
सो ये फोरकास्ट है, दैट इज द बेस्ड ऑन द ऑडियंस जो आप लोगों ने पिक करा है, बेस्ड ऑन द लोकेशन जो आप लोगों ने पिक करा है, बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो आप लोगों ने पिक करा है, तो उसने आपको एक फोरकास्ट दे दिया कि यू कैन इन 30 डेज आप 30 डेज में इतना एड स्पेंड आप लगा सकते हो, राइट। इतना आपको रीच मिलेगा, इतना आपको क्लिक कॉस्ट पर क्लिक पड़ जाएगा, और इतना आपको एवरेज फ्रीक्वेंसी आपको 30 डेज के अंदर मिल जाएगा, राइट। सो अभी इस पर थोड़ी और बात करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा और नैरो डाउन करते हैं। बहुत ज़्यादा इतना पैसा तो हम नहीं लगा रहे अभी एक कैंपेन के ऊपर इनिशियल बेस पे, थोड़ा और कट शॉर्ट करते हैं, नैरो डाउन करेंगे सभी। ध्यान से समझिएगा, सारा गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारा गेम इस ऑडियंस क्या है, इसी पेज के अंदर सारे सिनेरियोज हैं इसके, ठीक है। ओके, सो जब मैं यहाँ पे गया, वी हैव ऑप्शन कि दीज आर द ऑडियंस जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे। सो यहाँ पे मेरे को दो ऑडियंस मिलती है, वन इज योर ऑडियंस, सेकंड इज योर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, राइट। सो अगर मैं ये चीज बोलूँ, दीज आर द वार्म ऑडियंस, दीज आर द कोल्ड ऑडियंस, ये मेरी बहुत एक्टिव ऑडियंस है, और ये मेरी काइंड ऑफ कोल्ड ऑडियंस है, जिसे मैं उसके एट्रीब्यूट्स के बेस पर टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। जार्गन से आप लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ऑडियंस या ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, वो आपकी कॉल है। मैं से वार्म और कोल्ड बोलता हूँ, वो सबके अपने अपने वर्ड्स, वो कोई प्रॉब्लम है इस केस में, ठीक है। सो जब मैं ऑडियंसेस के अंदर गया, वी हैव ऑप्शन कॉल्ड कंपनी, राइट। वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक। We have an option called we can target the audience based on education. We have an option called we can target the audience based on their job experience, right. We have an option that we can target the audience based on their interests and traits, right. So one by one start karte hain. When we see in a company, right, we can target the audience based on their company category. We can target the audience based on the company connection, right, based on company growth rate, company industry, company name. Make sure ये याद रखिएगा, company name, right, company revenue and then company size, right. I think ये थोड़े से चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, that we can target the person जो कंपनी से लिंक्ड है, राइट। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग में लिंक्डइन बहुत ध्यान से कौन कौन यूज कर रहा है? सब लोग यूज करते हैं लिंक्डइन, यूज करते हैं आप लोग? यस सर। राइट। Yes, sir. Yes. फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, व्हाट इज द सेकंड डिग्री कनेक्शन? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री? सर फर्स्ट डिग्री कनेक्शन इज लाइक मेरा कनेक्ट, मतलब एकदम डायरेक्ट कनेक्शन जिससे हुआ है, फर्स्ट कनेक्शन। और जो फर्स्ट कनेक्शन के अंदर दूसरे कनेक्शंस हैं, वो सेकेंडरी कनेक्शंस होते हैं। अगर मैं राउट होके या आ रहा हूँ आपने तो जो मैं टर्म यूज की थी सेकंड हो गया, राइट। सर, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन, उसके जो फ्रेंड्स हुए वो बाद वाला कनेक्शन जो आपने नाम लिया था अभी, ठीक है, सेकंड और फर्स्ट वाला। ठीक है। सो आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है। जब मैं ये चीज बोल के चल रहा हूँ, ओके। सो जब मैं ये चीज बोल के चल रहा हूँ कि वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर कंपनी कनेक्शन, वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन द कंपनी ग्रोथ, और सॉरी, यस, वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन द कंपनी नेम, राइट। जस्ट एक एग्जांपल, मैंने कंपनी नेम लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया एप्पल। तो मैं अब एप्पल का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जो एप्पल के अंदर है, एप्पल से लिंक्ड है, राइट। सही है ना? Yes. Yes. So Yes. Apple is the first degree and the employees are second, right? Right, right. Even आप लोग ये भी चेक कर रहे होंगे कि when I pick a Apple ना, यहाँ पे Amazon भी उसने मेरे को दे दिया, it has suggested Microsoft, it has suggested Twitter, Adobe, बाकी सारी कंपनीज उसने मेरे को दी। तो डेट मीन्स, जैसे आप लोगों ने शायद ये चीज ऑब्जर्व भी करा होगा, गूगल के अंदर भी, फेसबुक के अंदर भी, अगर आप कंपनी बेस्ड टारगेट करते हैं, यूट्यूब के अंदर भी देखा होगा, जब आप एक सर्टेन चैनल को टारगेट करते हैं, राइट, तो वहां पे वो ऑटो सजेस्ट भी आपको देता है कि आप इसे भी टारगेट कर लो। इन अ सेम सिनेरियो, व्हेन आई पिक एप्पल, इट इज सजेस्टिंग वी कैन टारगेट द ऑडियंस which is linked with YouTube, which is linked with the Amazon, which is linked with the Netflix, or vice and so on, राइट। तो मैं इन सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। सो अभी के लिए फिलहाल मैं इसे फर्स्ट कनेक्शन रखता हूँ, मैंने इसे एप्पल रखा। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा, इसने ब्रेक डाउन करा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कितने मिल जाएंगे, सेल्स में आपको कितने मिल जाएंगे, एजुकेशन बेस आपको कितना मिल जाएंगे, और आई थिंक फोरकास्ट भी थोड़े चेंज हुए। तो जैसे जैसे कि मैं नैरो डाउन करूंगा, देन डेफिनेटली मैं उस केस में और नीच चला जाऊंगा, राइट। जैसे एक एग्जाम में अगर रिमूव करता हूँ सारे एट्रीब्यूट्स, मैं दोबारा से इसी पे आता हूँ। सो थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत अच्छा है पॉइंट ये वाला। ऑडियंस बहुत ध्यान से समझिए, बाकी इंटरफेस और साइंस से निकल जाएगा, ऑडियंस थोड़ा ध्यान से समझिए। ओके, सो जब मैं
ऑडियंसेस पे जाता हूँ। रीसेट करते हैं ऑडियंस। ठीक है। सो जब मैं ऑडियंस के अंदर गया, वी हैव ऑप्शन कॉल्ड कंपनी, राइट। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सेकंड ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक, राइट। सो इन अ डेमोग्राफिक वी हैव ऑप्शन कॉल्ड मेंबर, वी कैन टारगेट बेस्ड ऑन देयर एज, राइट। इवन जब मैं इसे और बैक करता हूँ एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख भी रहे हैं ये भी ट्रिगर नहीं होगा, तो यानी कि अगर ये ट्रिगर नहीं है तो आप उसे इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते ए सेगमेंट। अगर आपने नीच जा रहे हैं तो इतना नैरो डाउन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यस, दूसरे सेगमेंट में अभी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लोज करते हैं, वापस से नैरो करते हैं, एंड देन अब अगर मैं एजुकेशन गया तो आई थिंक वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर डिग्री, वी कैन टारगेट देयर फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ एमबीए, जो लोग एमबीए या सॉरी मास्टर लिख लेते सीधा, मास्टर डिग्री पे या वो जो बैचलर्स डिग्री पे, तो उस तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इवन अब अगर मैं इसे और नैरो डाउन करूँ, वी कैन टारगेट द मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स। और ये डेटा कहाँ से पिक हो रहा है? यस, ये डेटा कहाँ से पिक हो रहा है? एनीवन? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? सर लिंक्डइन प्रोफाइल से, लिंक्डइन पे जो ऑलरेडी ऑडियंस ने बना रखा है, जो ऑलरेडी मेंबर्स ने बना रखा है, तो बेस्ड ऑन दैट वो उसने उस सेगमेंट को, राइट, उस ऑडियंस को इस सर्टेन सेगमेंट के अंदर ड्रॉप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरा एमबीए, डेफिनेटली मेरे को उसने एट्रीब्यूट्स वाइज एजुकेशन में एमबीए कैटेगरी में डाल दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना डेटा फिल करा हुआ है। तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिंक्डइन को प्रोवाइड करा है, दैट इज बेस्ड ऑन दैट, राइट, वो मेरे डेटा को उस कैटेगरी के अंदर पेस्ट कर देगा, राइट। और जब कोई ऑडियंस या सॉरी, जब कोई एडवर्टाइजर ऑडियंस पिक करता है, देन डेफिनेटली इन दैट केस my data will be there, and in that case definitely that certain advertisement will be visible on my feeds over the LinkedIn, right? Okay, so अब अगर मैं ऑडियंस के अंदर जाता हूँ, आई थिंक दीज आर द क्लियर पॉइंट, राइट। इंटरेस्ट हो गया, जॉब एक्सपीरियंस हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, कंपनी हो गया, यस। अगर मैं इंटरेस्ट भी ले लेता हूँ तो इंटरेस्ट, so member interest, जनरल ट्रेड पे ले लेते हैं कि if a person is having an interest in art, business management, career employment, health, politics and law, right, based on their interest we can target the audience, right। मैंने यहाँ पे क्लिक करा एडवर्टाइजिंग, तो देयर आर अदर ऑप्शंस, सब हेड्स आर देयर, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, B2B मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो दैट इज लिस्ट गोज ऑन। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वी कैन टारगेट द ऑडियंस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्लियर है अभी तक का? यस, नो? सो ये वही सेगमेंट है जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा होगा, बेसिस ऑफ दैट आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखेगा, राइट। जो भी आप जनरल ट्रेड आप लोग अपने सबमिट करते हैं, आप लोग अपना प्रोफेशन जो डालते हैं, उसके बेसिस पे ही सारा मोमेंटम आता है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल मैं अभी के लिए मार्केटिंग रखता हूँ, वैसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझे प्लीज। इस ऑडियंस को सेव करते हैं, इसका मैंने नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस ली है, तो मैंने यहाँ पे इसका नेम रखा दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग, और दैट इज कॉल्ड जोमेटो एडवर्टीजमेंट है, और लीड कैंपेन। सेव करा। सो आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है। जब मैं इसे सेव कर रहा हूँ तब ये ऑडियंस मेरी सेव ऑडियंस के अंदर कॉल कर जाएगी, जैसे करके मैं ऑडियंस बिल्ड करते जाऊँ। यस, नो? क्लियर अभी तक का? यस, सॉर्टेड अभी तक? यस। ओके, काफी लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ हैं सब लोग? यस, बाकी लोग भूमि? Yes, sir. सॉर्टेड? Yes, sir. Yes, sir. गगन? ठीक है। Okay, so I have picked the audience based of their interest. So मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस ली और मैंने उसे सेव कर लिया। फर्दर अगेन वी हैव ऑप्शन कॉल्ड एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट आता है हमारा। हम लोग यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो यस, वी हैव ऑप्शन कॉल्ड सिंगल इमेज एडवर्टीजमेंट, क्राउजल, वी हैव ऑप्शन कॉल्ड वीडियो, टेक्स्ट, स्पॉटलाइट। तो ध्यान समझिए प्लीज, मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। फॉलोअर्स, डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्जन, इवेंट, देन आर्टिकल इन न्यूज़लेटर। दैट इज न्यू वन जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। देखिए
सिंगल इमेज आई थिंक जब हम लोग अपनी लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, एक मिनट, यस, सो लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, दीज आर द फीड्स जो कि आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इन अ फीड्स वी हैव ऑप्शन, ये मेरे को एडवर्टीजमेंट मिल रहा है विद अ सिंगल इमेज, राइट। सो ये मेरा वही वाला एडवर्टीजमेंट है जो अभी हम लोगों ने देखा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सिंगल इमेज एडवर्टीजमेंट है, कोई क्राउजल नहीं चल रहा, कोई वीडियो नहीं चल रहा, तो दैट इज अ सिंगल इमेज। बट इसमें एक चीज है जो कि आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन अप। सबको विजिबल है? एंड ये लैंड हो रहा है एक सर्टेन फॉर्म के ऊपर, जो कि आप लोगों ने गूगल के अंदर भी देखा होगा, इन सेम सेम थिंग आप लोगों ने फेसबुक में भी नोटिस करा। तो दैट इज अ लीड कैंपेन जिसकी हम लोग बात करते हैं। और ये लीड कहाँ सबमिट हो रहा है? यस, ये जो लीड सबमिट हो रहा है लिंक्डइन के इंटरफेस के ऊपर ही सबमिट हो रहा है। यस, दैट इज अ लीड फॉर्म, राइट। यहाँ पे कोई वेबसाइट पे डिविएशन नहीं दिया, इन्होंने सिंपल सा लिया, आप उस पर साइन अप करो, और सॉरी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, देन लीड सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज अ लीड फॉर्म जो कि आप लोग के सामने खुला। ओके, सो सिंगल इमेज के अंदर गए अभी हम लोग, मैंने अभी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। देन हम लोग यहाँ पे कंपनी पेज सबमिट करते हैं जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे बना हुआ है। मेक श्योर एडवर्टीजमेंट से पहले आप लोगों का कंपनी का पेज रेडी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? कंपनी पेज रेडी होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, फर्दर वी हैव ऑप्शन कॉल ट्रैकिंग, अभी आते हैं इस वाले पार्ट पे। ओके, सो दैट इज द प्लेसमेंट। So in a placement, we have a two option, right? One is LinkedIn. Second one is, LinkedIn audience network. What is the difference? Anyone? I think आप लोगों ने Facebook पे ही पढ़ा। What is the difference? LinkedIn means only LinkedIn, and LinkedIn audience network means other connection of LinkedIn which is connected to LinkedIn. Okay. And okay, yes. Further, yes. Anyone? Yes, Tanishka. Sir, I have a question. सर जो हम लोग कैरोसेल वाला है उसके अंदर कितनी इमेजेस वी कैन पुट? देखिए, कोशिश यही करी जब हम लोग क्राउजल के ऊपर जाते हैं 3 या 4 से ऊपर मत डालिए, क्योंकि Okay, ज्यादा। and what? Okay, so sorry to interrupt. And what do you think will give us better results? वीडियो वाली या फिर नॉर्मल पिक्चर एड? डिपेंड्स, अगर आपका And एंगेजमेंट, डिपेंड्स अगर आपका अगर आप लोगों ने चीज नोटिस भी करा होगा, फेसबुक के अंदर भी हम लोग एंगेजमेंट कैंपेन जब चलाते हैं तो हम लोग वीडियो डालते हैं, और जब हम yeah, लोग नॉर्मल लीड कैंपेन चलाते हैं या उस तरीके से डालते हैं तब हम लोग नॉर्मल इमेज, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक सब लोग एग्री भी करेंगे व्हेन वी पुट अ वीडियो ना लीड कैंपेन के अंदर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बंदा एंगेज हो जाएगा वीडियो के अंदर एंड ही फॉरगॉट टू सबमिट द लीड, इन दैट केस देयर आर चांसेस कि हमारे पास लीड काउंट कम आएगा। तो okay. ट्राई And योर the बेस्ट। ad budget, sorry. नो The नो ad budget can increase and decrease accordingly. यस यस डेफिनेटली, बेस्ड ऑन दैट अगर आप वीडियोस वगैरह डालते हैं या इमेजेस वगैरह डालते हैं, उस केस में भी कॉस्ट पर लीड आपका इम्पैक्ट होता है बेस्ड ऑन द क्रिएटिव, बेस्ड ऑन द एड कॉपीज जो आप लोग बनाते हैं। Okay. बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये कैंपेन पैरामीटर के अंदर, राइट। इवन वन थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, ये चीज सब मैं सभी को बोल रहा हूँ, आई थिंक सबको ये चीज पता भी होगा, when we do a process of lead generation campaign, right, in that case our major focus is we try to submit the landing page rather than website, just because of if we submit a website, there are the chances that customer deviate on a certain website in, or he just click on the navigation section, those are available on the website, he forgot to submit the lead, right. But if we submit the landing page, then there is a highly chances that customer will fill the form, and our objective will definitely meet there. It is clear? Yes. Yes, sir. Okay. सो यस, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को अभी थोड़ा सा और आंसर क्लियर चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग, सॉरी, So, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क? यस यस so LinkedIn only is for when we only want to show our ad on LinkedIn. But LinkedIn audience network is when we want to show the ad on LinkedIn and as well as on other websites also. Makes sense, yes.
Yes. Further, anybody add? Anyone want to add? LinkedIn audience is where the current audience that is on LinkedIn is already interacting on a different platform. So if we choose LinkedIn audience, then that ad will also be shown there. And if we just go for LinkedIn, then it will be only shown on LinkedIn itself. Okay. Perfect. Yeah. Afreen, Harshu, बताइए. Yes. LinkedIn is we are showing only on the LinkedIn our advertisement and LinkedIn network. That means our ad showing specific professional like content writer, SEO experts, professionals, and other fields. So this is LinkedIn network and this is LinkedIn only. Okay. Okay. Yes. बाकी लोग क्या है? Further. हाँ जी. It is like Google Partners Network, whose AdSense are approved. This is like that, na? Yes. Yes. Third party वाला जो आता है इसमें. Yes. Yeah, that's one. So, LinkedIn audience network is like you can run your ad beyond LinkedIn, like partner apps or websites. You can Right. Right. show Makes your sense. ad. Makes sense. Makes sense. Okay. मैं इसे बिल्कुल conclude कर रहा हूँ. थोड़ा ध्यान से please. You know when we see in a LinkedIn, यहाँ पे सारा advertisement जो चलेगा बहुत ध्यान से समझिएगा. Website and mobile app. So that means it will be visible over the LinkedIn website, both on the mobile application and browser. And when we talk about LinkedIn audience network, it will consider third party publisher. That means those are the website जहाँ पे वो audience, for example, एक मिनट किसी ने ज्वाइन करा है, वो ऑडियंस जो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है और वो कोई थर्ड पार्टी साइट को भी बहुत ज्यादा यूज कर रही है, इन दैट केस वहां पे भी चांसेस हैं कि वो उन ऑडियंस को कैंपेन दिखे. अभी क्लियर है? So the audience will be same on different platforms, Yes, right? yes, yes. Audience can be in different. Yes. Okay. So these are the two factors. अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि ऑडियंस आपकी कन्वर्जन लिंक्डइन पे ज्यादा है, कीप इट एज लिंक्डइन. अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी, तो आई थिंक मैं थर्ड पार्टी रिकमेंड नहीं करूँगा. थर्ड पार्टी के केस में आप लोग शायद गूगल एडसेंस, सॉरी, कौन सा कैंपेन चला सकते हैं गूगल के यहाँ पे आप लोग? क्या सर? अगर आपको ये चीज बोल के, बहुत ध्यान सुनिए सभी लोग, अगर मैं आपको ये चीज बोला लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क पिक करने से अच्छा आप गूगल का कोई और कैंपेन चला सकते हैं, वो कौन सा है? Google display. यस, डिस्प्ले कैंपेन. यस. Yeah, ठीक है. it's Google गूगल Display. डिस्प्ले. यस. ओके. सो So, यहाँ पे मैं but we will like set different audience on Google, right? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं आप लोग केस में. इवन Because इवन जैसे हम लोग, मैं बहुत ध्यान से एक चीज ऐड कर रहा हूँ, जैसे हम लोग मेटा के अंदर रीमार्केटिंग ऐड कर सकते हैं ना. अगर कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आ गया तो मैं लिंक्डइन के ऊपर भी रीमार्केटिंग चला सकता हूँ, तो वो तो बंदा ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएगा हर जगह पे. वो दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को कैसे आता है. ओके. सो मैंने इसे बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन रखा अभी. एंड देन मेरे पास डेली बजट का ऑप्शन है. मैंने बजट डाला 1000 रुपीज का, कैंपेन रन करता हूँ. ओके. मेन पार्ट, कन्वर्जन सबको पता है. व्हाट इज द कन्वर्जन ट्रैकिंग? हाँ जी, व्हाट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग? सर कन्वर्जन ट्रैकिंग मीन्स अगर कोई भी मेरे लैंडिंग पेज पे या मेरे ऐड के किसी भी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर के मतलब वो लैंड करेगा. दैट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग. अगर किसी ने क्लिक किया कॉल टू एक्शन पे तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुंचेगा या मेरे फेसबुक पेज पे पहुंचेगा या फिर मैं जहां भी उसको लैंड करवाना चाह रही हूँ वहां जाएगा. ओके. सो कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब क्या होगा इस केस में? सर मैं ट्रैक कर पाऊंगी कितने लोग उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं. मेक सेंस, मेक सेंस. सो मैं अपने क्लिक के कन्वर्जन को काउंट कर रहा हूँ. यस राइट. सर. ओके. सो आई यस. थिंक एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ. जब हम लोग मार्केट में, आई थिंक अभी आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि मैंने आपको ये बोला था कि टारगेट्स होते हैं. किसी ने ये चीज नोटिस करी थी? मैंने बोला था टारगेट्स होते हैं शुरू में. मैंने बोली थी टारगेट्स होते हैं इस लाइन के अंदर. देखिए, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बोला था कि हम लोग के सर्टेन टारगेट्स होते हैं कि मेरे को लिंक्डइन से इतना ट्रैफिक लेके आना है या गूगल से इतना वो लेके आना है. अब थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से समझिए. वी हैव अ टारगेट्स, राइट? वी हैव अ सर्टेन टारगेट्स फॉर द सर्टेन ड्यूरेशन, कि मेरे को एक कस्टमर को कितना लीड पास ऑन करना है एक विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, राइट? एंड इट कैन नॉट बी कि मैंने सिर्फ लीड लिया उसे डिलीवर कर दिया. इट शुड बी अ क्वालिटी लीड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे ने मांगे 100 नंबर, मैंने बंदे को 100 नंबर ट्रांसफर कर दिया, मेरा जॉब खत्म. नहीं.
वी हैव अ टारगेट कि वो 100 के 100 नंबर चलने चाहिए. वी हैव अ टारगेट वो 100 के 100 नंबर पे कस्टमर का इंटरेक्शन होना चाहिए. एंड वो 100 के 100 नंबर दीज दोज शुड बी आवर प्रोस्पेक्ट. अगर कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो रहे वो बात की बात है. दोज शुड बी आवर प्रोस्पेक्ट. आई थिंक सबको ये चीज क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ. क्वालिटी ऑफ लीड शुड बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव. ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहीं से भी कोई चीज पढ़ी है, मैं बिल्कुल थंब रूल आपको दे के चल रहा हूँ. मार्केट आसान नहीं है, राइट. इट शुड बी हाईली बेस्ड ऑन क्वालिटी. हम लोगों को सिर्फ ट्रैफिक नहीं लेके आना है, हम लोगों को क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक लेके आना है, राइट. और शायद आप लोगों ने, अगर आप लोग बहुत ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट सभी को हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मार्केट को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, तो आज के टाइम में मार्केट में एक नया वर्ड ऐड हुआ है, दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग. पता होगा सबको परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट. सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ध्यान रखिए, परफॉर्मेंस लेके आनी है हमें. इट इज़ नॉट लाइक हम लोगों ने से डिजिटल मार्केटिंग का कर दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं कि ट्रैफिक लेके आ गए, पेज ऑप्टिमाइज कर दिया. इट शुड नॉट बी, राइट. हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लीड लेके आना, हमें परफॉर्मेंस डिलीवर करनी. एम आई क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर सभी को? Yes, sir. Yeah. राइट. सो मेन फोकस, राइट. मुझे नहीं पता है कि आप लोगों का भी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मेक श्योर योर अचीवमेंट, योर टारगेट शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, राइट. ध्यान रखिएगा. ओके. सो यहाँ पे एक बार प्लीज म्यूट रखिएगा प्लीज सब लोग. ओके. जब मैं यहाँ पे मैंने कन्वर्जन बोला, देन वी हैव ऑप्शन कॉल एक मिनट रुकिएगा प्लीज. ओके. सो जब मैं यहाँ पे कन्वर्जन बोल रहा हूँ, यस वी कैन कन्वर्ट, वी कैन काउंट द कन्वर्जन, right. If a certain person land on a certain page, I just want to count them. तो मैं उस केस में कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाऊंगा. If I am focusing on lead, then definitely I will count those leads, right. मैं ये नहीं करूंगा लीड आ गए दैट इज ओके, नहीं. मैं उस लीड को काउंट करूंगा, मेरा कन्वर्जन में दिखना चाहिए. मैं ये नहीं करूंगा कि मैं कस्टमर को कॉल करके पूछूंगा सर आपके पास कितना लीड है. आई डोंट फॉलो दिस प्रोसेस, राइट. आई चेक द डेटा. मैं इंटरफेस पे चेक करूंगा सारी चीजें कि भैया कितना अकाउंट मेरे पास है. बेस्ड ऑन दैट आई पिच द कस्टमर कि सर यू गॉट द लीड, यू गॉट द 5 लीड्स, इट इज टाइम टू कॉल दैम, राइट. तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करूँ. सो कन्वर्जन ट्रैकिंग, वी कैन क्रिएट द कन्वर्जन. यहाँ पे मैंने क्लिक करा, टैग लगते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर भी. इनसाइड टैग पे मैंने क्लिक करा, इस टैग को मैं नाम दूंगा. देन वी हैव, देख लीजिए प्लीज, मैंने इसका नाम दिया, मैंने इसका लीड कन्वर्जन लगाया, लीड कन्वर्जन लगा. कैटेगरी मैंने रखी लीड की, और 30 डेज का सेटअप रखा एज इट इज. थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक करा, इस कोड को मैं मैन्युअली प्लेस करूंगा. देन आई हैव अ ऑप्शन कॉल्ड मैनुअल कन्वर्जन सेटअप. इस पे मैं गया, और लैंडिंग पेज के थैंक यू पेज पे मेरे को सेटअप करना है. मैं एक सर्टेन पेज को मैं पिक कर लेता हूँ उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल मैंने पिक करा इक्वल्स टू, और जब एक सर्टेन पेज कॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, जब एक सर्टेन पेज कॉल होगा तब जाके वो मेरा कन्वर्जन काउंट होना चाहिए. मैंने इस पेज को डाल दिया, इक्वल्स टू में डाला ये, राइट. मैं इसे क्रिएट करता हूँ. देन आई गॉट फ्यू ऑफ द कोड्स. अगर आपने पहली बार लगाया होगा तो कोड्स आपको मिलेंगे. कोड्स मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने डाल रखे अपनी साइट के ऊपर. तो कोड लेना है मेरे को अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर डालना है. तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा. लीड का कन्वर्जन है, तो यहाँ पे मेरा लीड कन्वर्जन में सेटअप करता हूँ. इज इट क्लियर? यस, नो? यस. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो मेक श्योर, देखिए एक चीज शायद किसी ने स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमें पेज पे काम पहले कर लेना चाहिए. ये कन्वर्जन सेटअप भी आपको पहले ही करना है, सो दैट जब आपका कैंपेन खत्म हो गया, एट द एंड यू गॉट द थॉट कि यार मैं तो कन्वर्जन डालना भूल ही गया. सो आई थिंक दैट इज द सिचुएशन जहाँ पे आप सब स्पॉइल कर चुके हो ऑलरेडी. ये सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे. एट द एंड जब आप लोगों को ये चीज़ पता लगती है आपने कन्वर्जन सेटअप नहीं करा और सारे पैसे आप लगा चुके हैं, राइट, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि यार ये तो स्पॉइल हो गया. तो वो सिनेरियोज नहीं आने चाहिए. बेसिक प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर. आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से रेडी करके रखना है. ठीक है, सॉर्टेड है चीज़. सी यस नो? Yes, sir. ठीक है. ओके. सो ठीक है, इसे कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को. तो जब मैं इसके अंदर गया, कन्वर्जन मैंने सेटअप कर ही लिया है. देन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं. इसका मैंने डेट एंड टाइम सेट करा. ठीक है. कंपनी नेम रिक्वायर्ड. ठीक है, मैंने एसोसिएट पेज कर दिया. कंफर्म कर देते हैं इसे. ओके.
अब अगर आप एक चीज नोटिस करते हैं, वी हैव ऑप्शन कॉल ऐड फॉर्मेट। यहाँ पे आप लोग इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, दिखा कर लेते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सेव कर लेते हैं इसे। कुछ एक्स्ट्रा है जो इसे बंद करते हैं। ऑडियो सेव है, डन है, सिंगल इमेज अपलोड कर दिया, ठीक है। लोकेशन ऐड कर देते हैं एक बार, मेरे को कहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोएडा ले लिया अभी के लिए फिलहाल, तो चलिए दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, दिल्ली बेस्ड कैंपेन में सेटअप कर रहा हूँ। ऑडियंस फोरकास्ट आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, डेटा अपने आप चेंज होगा उस केस में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। ओके सॉरी, वो विंडो चेंज हो गया था मेरा। मेरी वॉइस क्लियर है? यस नो? यस सर। सॉरी, वो विंडो चेंज हो गया, दैट इज द रीजन थोड़ा स्विच हो गया था। ओके, सो जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग एक मिनट रुकिएगा। यस, सो थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। जब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने कन्वर्जन सेटअप मैंने कर लिया है, राइट। मैंने यहाँ पे बजट सेगमेंट डाल दिया, मैंने लोकेशन बेस्ड टारगेट कर लिया। सर योर स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। ओके सॉरी, माय बैड, माय बैड। डन? यस सर। ओके, सो जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियोस देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस सेट कर दिया, यानी कि मैंने ऑडियंस ले लिया यहाँ पे अपना, राइट। मैंने यहाँ पे डेली बेस्ड कैंपेन सेटअप कर लिया, यानी कि मैं डेमोग्राफिकली ले सकता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वी हैव ऑप्शन कि यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो मैं फर्दर पे क्लिक करता हूँ, सेव। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैं अपने कैंपेन्स को बिल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करूंगा, ऐड कॉपीज वगैरह बनाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया कि ये मेरा जोमेटो का कैंपेन है, दैट इज जोमेटो। इंट्रो टेक्स्ट मैंने लिया एज इट इज, इंट्रो टेक्स्ट डाल दिया। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लाइव देखा था। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से कैंपेन है, दैट इज प्रमोटेड। प्रमोटेड इज योर एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपने इंट्रो लिखा, तो यहाँ पे इंट्रो दिख गया। दैट इज डेस्टिनेशन यूआरएल, आपने लिया यहाँ पे डेस्टिनेशन यूआरएल सबमिट करा, इट शुड बी योर लैंडिंग पेज, राइट। हेडलाइंस, यहाँ पे अपनी हेडलाइन सबमिट करते हैं, यू हैव ऑप्शन। इसमें नंबर ऑफ हेडलाइंस वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको फेसबुक वगैरह में देखने को मिलता है। सिलेक्ट इमेज, सो कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल। तो मैंने यहाँ पे लिया, इमेज अपलोड कर दिया, ऐड टू लाइब्रेरी। 800 बाई 800 पिक्सल का इमेज प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट, ठीक है, इमेज मैंने अपलोड कर दिया। आई थिंक सबको कुछ दिख रहा होगा, सेम पैटर्न है, प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो दैट इज द सेम पैटर्न जो कि एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट है। इमेज शुड बी देयर, हेडलाइन शुड बी देयर, इंट्रो शुड बी देयर। ये सारी चीजें आप डालेंगे, फिर आपकी ऐड कॉपी रेडी हो जाती है, राइट। सो फर्दर अगर मैं चाहता हूँ तो वी हैव ऑप्शन कॉल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं एक बार, एंड वी आर डन। दैट इज अ कॉल टू एक्शन। तो जो जिस कॉल टू एक्शन शुड बी कैसा होना चाहिए? यस, एनीवन, एनी सजेशन based on the product and service? Yes, call to action, बाय नाउ। buy now, right, ठीक है। सो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे पिक करा, एंड देन मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ बाय नाउ, सिंपल सा। सो यस, बाय नाउ सबमिट करा मैंने इस पे, एंड वी आर डन। सो इस तरीके से पूरी ऐड कॉपी या ऐड सेटअप बनता है लिंक्डइन के अंदर।
मेन पार्ट ध्यान रखिएगा, मेन यहाँ पे आपको क्रिएटिव शुड बी योर वेरी क्लियर, ऑडियंस शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि इन दो पैरामीटर्स के ऊपर पूरा कैंपेन सेटअप होता है और पूरी एट द एंड अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, कैंपेन का सक्सेस रेशो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर है, आपकी एड कॉपी और आपकी ऑडियंस, राइट? ओके, सो कोई भी क्वेरी है यू कैन रेस, यस प्लीज, कोई भी क्वेरी किसी का फर्दर, कोई क्वेरी अभी तक का? यस एनीवन? कोई क्वेरी किसी का? यस बताइए तनिष्का। Yes, sir. Abhi, you mentioned that in performance marketing we also have to ensure कि जो हमारी leads आ रही है they're getting converted further, right? So let's assume that we're doing all the steps correctly, then also we are not getting as much conversion. So what should be your plan of action then? To be very honest, in that case we have to re-monitor our ad copies. हमें ऑडियंस चेक करना पड़ेगा जो हमने बिल्ड करा है, वी हैव टू चेक द लोकेशन, जिस लोकेलिटी में या जिस लोकेशन हमें टारगेट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वहाँ पे मेरे को लीड तो आ रहा है लेकिन मेरे को एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो इन दैट केस मेरे को डेफिनेटली अपनी एड कॉपीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। All right, and is it possible that we are getting multiple duplicate leads because of our poor ad campaign? Yes, that there's a chance. Okay. Definitely. Okay, that's it. Thank you. हाँ जी, फर्दर किसी का कोई क्वेरी? ओके, सो कुछ पॉइंटर हैं। यस बताइए। For a mid-budget campaign focus on B2B lead generation, how would you split the budget across sponsored content, email, and lead generation from specific for service-based businesses? To be very honest, it depends on company to company. It depends on customer to customer. If the guidelines or if it is being decided that all leads should be via the Facebook, then in that case we don't refer any second thought. We don't refer any Insta or LinkedIn if it is being decided, right? If it is not being decided, then definitely based on the experiences which we are getting. For example, अगर मेरे को Facebook से अच्छा मिल रहा है, then definitely we will put the major part of our budget in a Facebook, and then definitely proportionately I will split the budget. It is not a certain fixed standard there कि मेरे को इतना ही करना है, then definitely, but yes, for the email marketing I can say hardly 1 or 2% we can use in the email marketing. Rest will be go for the kind of Facebook and Google, definitely. Yes, anyone? Sir, like on LinkedIn, we mostly get sponsored ads or message ads. So, sir, like how to make this sponsor ad? So yes, so यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं ये चीज़ चेक करता हूँ एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी। मैंने आपको शायद स्पॉटलाइट पे एक चीज़ रोकने के लिए बोला था, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग चेक कर पा रहे हैं स्पॉन्सर्ड? यस Yes, sir. राइट, सो दीज आर द मैसेजेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिंक्डइन के अंदर आप लोग फीड्स में एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, मैसेजेस के अंदर दिखा सकते हैं, और मैंने आपको एक जगह रोका था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज अ स्पॉटलाइट, जो कि आप लोग अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे, तो जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आएगा वो स्पॉटलाइट होता है, इस तरफ जो आता है, राइट? तो आप लोग यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू भी बंदे को रीच आउट कर सकते हैं, स्पॉटलाइट में भी दिखा सकते हैं एडवर्टीजमेंट, इवन आप लोग फीड्स में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास में। लेकिन हाँ, मेक श्योर करेंगे कि जब मैं लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन शुड बी हाईली फोकस्ड, राइट? वहाँ पे बजट सेगमेंट आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे लिंक्डइन के ऊपर। यस, फर्दर कोई क्वेरी? ओके सर, आई हैव अ क्वेरी। बताइए। सर, जो ये लिंक्डइन पे हम लोग एड्स चला रहे हैं, इनके जो रिस्पॉन्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, एक बार वो बता दीजिए कहाँ पर दिखते हैं? वैसे ही नॉर्मल जैसे फेसबुक और गूगल में दिखते हैं। सेम प्रोसेस है। आप उसके इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाता है, वहाँ पे लीड ड्रॉप कर सकते हैं आप लोग। मैं दिखा भी दूँ इनफैक्ट आपको। अब अगर मैं एक चीज़ थोड़ा ध्यान समझिए प्लीज सब लोग, मैं अभी इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ।
देखिए, सो यस, यहाँ पे मेरे पास ऐड कॉपीज है कि मैं इवेंट चला सकता हूँ, क्राउजल चला सकता हूँ, टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट चला सकता हूँ। अब मेन चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा इसके अंदर। यस, थोड़ा ध्यान से पढ़िए से, कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो प्लीज ओपन टू स्पीक। यस, challenges. Challenges: high CPC, cost per click, limited creative freedom. Yes. Solutions: optimize targeting and bidding, focus on high value leads. तो चैलेंजेस क्या है लिंक्डइन के अंदर? कॉस्ट पर लीड मेरा ज्यादा है, या कॉस्ट पर क्लिक मेरा ज्यादा है, और क्रिएटिव का फ्रीडम कम है। जैसे हम लोग बहुत फेसबुक में या मेटा में हम लोग देखते हैं कि वी कैन पुट द वेरिएशन, राइट? बहुत से अच्छे अच्छे वेरिएशन आ सकते हैं। लिंक्डइन के अंदर हर एक क्रिएटिव अप्रूव नहीं होता, तो थोड़ा क्रिएटिव लिमिटेशन है मेरे पास, राइट? लेकिन हाँ, सॉल्यूशंस भी है डेफिनेटली, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा था, वी कैन ऑप्टिमाइज द कैंपेन। एंड यस, हम लोग मेन फोकस करते हैं लीड के ऊपर, और सही से ऑप्टिमाइज करेंगे, डेफिनेटली वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, वी कैन अचीव आवर टारगेट डेफिनेटली इन दैट केस। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट मैं और ऐड करूंगा इसके अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबको पता भी होना चाहिए। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं चलिए इंटरफेस से दिखाता हूँ आपको। जो मेन पार्ट है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। हाँ, अब अगर एक बेसिक है पैरामीटर, जो शायद सबको पता होना चाहिए, कि जब हम लोग किसी कंपनी के पेज को फॉलो करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे गया, मैंने जोमेटो को फॉलो करा, सो आई थिंक सबको ये चीज़ पता होगा, कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अपने हैंडल पे अगर कुछ भी प्रमोट करती है, इन दैट केस यू गेट द नोटिफिकेशन, राइट? सो इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि कंपनी अगर मान लीजिए जॉब रिक्रूटिंग, जॉब का भी कोई ऑप्शन डालती है, या अपनी कंपनी नए प्रोडक्ट के बारे में डालती है, डेफिनेटली इन दैट केस यू गॉट द नोटिफिकेशन, राइट? तो मेक श्योर, अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है, राइट, इफ यू वांट कि मेरे को इस कंपनी को फॉलो करना है, या इस कंपनी में मैं ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कि आप उस कंपनी के पेज को फॉलो करें, सो दैट एट लीस्ट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर द एचआर और एनी पर्सन वहाँ पे जॉब पोस्टिंग अपलोड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये बहुत अच्छा एडवांटेज है लिंक्डइन के ऊपर, जो मैं स्टार्टिंग में हाईलाइट करना भी चाह रहा था। आप जितना ज़्यादा कंपनीज को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास कंपनीज के नोटिफिकेशन आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जितना ज़्यादा आप कंपनीज को फॉलो करेंगे, उतना आपके पास कंपनीज के नोटिफिकेशन आएंगे, क्लियर रखिएगा। ठीक है, सॉर्टेड? ओके, फर्दर कोई डाउट किसी का? वी आर ऑलमोस्ट डन। कोई किसी का डाउट है तो प्लीज बताइए, एंड आई होप सबको सेशन समझ में आया होगा। यस, डाउट्स बताइए प्लीज, किसी को कोई डाउट है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज अ ह्यूज टॉपिक, राइट? लेकिन यस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं। जैसे आप लोगों ने फेसबुक को पढ़ा है, अगर जिस 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 बंदे ने भी फेसबुक ढंग से पढ़ा होगा, डेफिनेटली उसे लिंक्डइन समझ में आया होगा। एंड आई ट्राई लेवल माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। सबको क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? डू योर Yes, sir. एक्नॉलेजमेंट अगर मैंने अच्छे से समझाया हो तो। बाय रेस्ट यू कैन Yes, गिव sir. द Yes. फीडबैक। मैंने आपको ऑलरेडी लिंक दिए हुए, यू कैन शेयर योर फीडबैक देयर। बाकी इन बिटवीन किसी का कोई क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं। यस, यस, कोई डाउट किसी का प्लीज पूछिए। Yes, and questions in chat. ओके, Can I read it? मैं चेक कर दूँ। ठीक है, ओके। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे रीमार्केटिंग की बात करते हैं, यस, जो अभी हम लोगों ने कन्वर्जन वाला प्रोसेस देखा था, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वाला पार्ट। मैं यहाँ पे गया, मैं लिंक्डइन के ऊपर जाता हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा प्लीज सबको। मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रीमार्केटिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पिक कर लेता हूँ वेबसाइट वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक करा, क्लासिक लिया, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करते हैं भी एज इट इज, डमी नेम डालना अभी के लिए फिलहाल, नेक्स्ट करा। ये दिख रहा है रीटारगेटिंग।
यस। तो यहाँ पे आप लोग रीटारगेटिंग वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिसने आपके कंपनी के पेज को विजिट करा, राइट, जिसने एक बार कन्वर्जन सबमिट करा है उस ऑडियंस को दोबारा टारगेट कर सकते हैं, या जिसने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करा या डॉक्यूमेंट अपलोड करा आपके इंटरफेस पे वो उसे टारगेट कर सकते हैं। इवेंट पे अगर किसी ऑडियंस ने एंगेजमेंट शोकेस करा आप उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो रीटारगेटिंग का ऑप्शन है। अगर आप रीटारगेटिंग लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक कोड आपको मिलेगा जो भी हमने डिस्कस कर रहा है वो कोड आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर डालना है, देन यू कैन रीटारगेट योर ऑडियंस। मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. यस। इवन जब हम लोग यहाँ पे एआई बेस्ड बोलते हैं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करा था, वी ऑलवेज गो फॉर मैनुअल प्रोसेस। जब हम लोगों को सारी चीजें आती हैं, हम लोगों ने मल्टीपल टूल्स पे काम करा, देन डेफिनेटली गो फॉर द मैनुअल प्रोसेस हमारा। ठीक है। In 2020, which is the best way to advertise on LinkedIn? मैम आपकी Document ads, traditional carousel videos, and couple ads. मैम आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रहा है, क्या कह रही हैं आप? My voice is clear. जी जी बताइए, अब रिपीट करिएगा। In 2025, which one the following is best for LinkedIn advertisement? Conversational ads, document ads, traditional carousels or videos. मैम बीच में ना डिस्टर्ब हो रहा है वॉइस। आई थिंक सब लोगों को हो रहा है, मेरी कोई आ रहा है डिस्टर्बेंस? सर डिस्टर्ब है आवाज, क्लियर नहीं आ रही है। मैम एक बार या फिर टाइप कर दी, एक बार मैं वेट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ओके यस, इन बिटवीन फर्दर किसी का कोई डाउट? भूमि, गरिमा, प्रिया, रिचा, यस, तनिष्का, विक्ट्री, जीना, तुषार, No, sir, all clear. क्लियर है? सो आई थिंक समझ में आया No, सभी को? यस। सो मेक सर श्योर करिए, प्लीज यस प्रैक्टिस सर। करिए जितना कर सकते हैं, राइट। अभी अभी आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत सही से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन यस, ये अगर आपने फेसबुक अच्छे से करा है देन डेफिनेटली सब कुछ अच्छा, मतलब आप लोग कर भी पाएंगे। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन गिव अ फीडबैक यू कैन शेयर, मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया। यू कैन, यस। अनुष्का, यस बताइए, हैंड रेज है आपका। यस। ठीक है, सो वी आर डन। अगर किसी का कोई क्वेरी है आप लोग वेट करते हैं, रेस्ट वी आर डन आज के लिए। आई थिंक सबको सेशन अच्छा लगा हो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉर So, लिसनिंग मी। यस। sir, please provide that slides. हाँ जी श्योर, मैं अभी सेंडिंग थ्रू आउट कराता हूँ, डेफिनेटली, नो sir, वरीज। also send the links also. ठीक है, श्योर श्योर आई डू। सर इट वाज अ ग्रेट क्लास, थैंक यू। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। यस, कोई डाउट है? थैंक यू वैभव, थैंक यू नेहा, थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिया, थैंक यू नेहा। यस श्योर, मैं साइट का लिंक शेयर करूँगा डेफिनेटली। थैंक यू गौरव, यस, थैंक यू निकिता, थैंक यू प्रभाषी, ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट किसी का फर्दर? नो सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आसिफ आप डाल रहे हैं डाउट अपना? सॉरी आफरीन, आप डाउट सबमिट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल।
ठीक है guys, thank you so much. Yeah. Okay. फोटो सिंगल सिंगल फोटो शुड बी क्राउजर ऑफ वीडियोस में मैम थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाता है, तो देयर आर चांसेस कि कस्टमर उस पे क्लिक करना भूल जाए। तो कोशिश ये करिए, अगर लीड बेस्ड कैंपेन है या ट्रैफिक डिविएशन वाले कैंपेन है, तो इट शुड बी सिंगल इमेज, सिंगल फोटो वाला। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। या